हाँ, got it पे कर This meeting is being recorded. एक बार फिर से you may have got a notification, उस पे got it पे click करें. We are ready to start. Thank you. Thank you, Amrita. A very warm welcome to all of you. Sabhi ko zindabad. Warm welcome on behalf of Anhad, on behalf of Satark Nagrik Sangathan, to this discussion that we have organized on keeping resistance alive. It's the 165th anniversary of the 1857 revolt, the first war of independence, which was fought against the British. It was a historical struggle, and we thought that it was a fit time to have a discussion to understand where we are at and discuss the significance of resistance. We know that the struggle that began, the independence movement, finally culminated in India becoming a democratic republic in 1947. And basically, if we had to understand, the most fundamental tenet of a democracy is the ability of citizens to resist, their ability to protest against injustice, against discrimination, against violation of their constitutional fundamental rights, and it is their ability to speak out against government policies, against actions of the government which are unjust and discriminatory. We've known that it's never been easy. Since we've gained independence, it's not like the way has been easy. It has been strewn with all sorts of challenges, challenges also to our right to resist, our right to protest and struggle. But the kind of attacks, the concerted attacks that we have been seeing in the recent years are what concern all of us. And it's something that we all need to collectively think about and find ways forward and keep the resistance alive. If there was no resistance, there would have been no independent India. And if there is no resistance today, there will be no democratic republic. India as we know it will not exist. So resistance is really at the heart of our entire political framing today, and we want to discuss it in great detail. We have a fabulous panel to discuss it with us today. We know the kind of attacks that we are undergoing on our constitutional rights, on our human rights and our fundamental rights, the right to equality, the right to live with dignity, the right to question, the right to choose, all of them are under attack. And anyone and any voices that resist, that speak out, that dissent are effectively targeted and crushed. We are seeing the kind of crushing of resistance and dissent, which in many ways is chilling. And that is what they are intended to be, supposed to cause a chilling effect. We've seen how anyone who dares to call out discriminatory laws and policies is labeled anti-national. There are all sorts of draconian laws, from UAPA to sedition. False cases are started against people, against those who resist or dare to dissent. There are imprisonments of those who, and all sorts of targeting of those who dare to resist. And yet, we know that resistance is alive and kicking in the country. We draw strength from the fact that despite this kind of crushing, there are still movements, there are still campaigns, there are still struggles that continue, big and small. We've seen the kind of protest that took place, how people took to the streets against the discriminatory CAA, the Citizenship Amendment Act, against the anti-poor, anti-farmer farm laws, against the anti-people land acquisition law that was sought to be brought in. That is really what keeps
India alive. That is what keeps us going, these big and small acts of resistance. So today, with these opening remarks, I want to invite our panelists. हम लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बातचीत करेंगे. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. कीपिंग रेजिस्टेंस अलाइव, प्रतिरोध को हमें जिंदा रखना है. कैसे प्रतिरोध आज रेलेवेंट है, इसके ऊपर डिस्कशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. अनहद और सतर्क नागरिक संगठन द्वारा ये डिस्कशन को ऑर्गेनाइज किया गया है. जो 1857 की क्रांति थी उसकी वर्षगांठ है. उसको याद करते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए कि आगे क्या करने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भारत ने आजादी पाई, हमने कहा कि हम लोकतंत्र हैं, हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को. उसमें सबसे जरूरी चीज है कि हर इंसान को, हमारे देश में हर नागरिक को ये अधिकार है कि अगर वो देखे कि कहीं पर भी गलत काम हो रहा है, अन्याय हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, वो अपनी आवाज उठा सके, वो प्रतिरोध की आवाज को उठा सके, डिसेंट कर सकें. पर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं. किसी पर भी ऐसी आवाज पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे समूहों पर जो रेजिस्टेंस को पुट अप कर रहे हैं, जो कि प्रतिरोध की आवाज बन रहे हैं, जो गलत सरकार की नीतियां हो, कानून हो, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं. और हमने देखा है किस अलग अलग तरीके से लोगों की आवाजों को, प्रतिरोध को कुचलने की कोशिशें लगातार जारी हैं, रोज हो रही हैं. वो चाहे लोगों को लेबल करने की हो कि आप तो देशद्रोही हैं. अगर आप कहते हैं कि हम अन्याय नहीं सहेंगे, आप आवाज उठाते हैं, तो आप देशद्रोही हैं. लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे यूएपीए, यूआपा के कानून के तहत, सेडिशन के कानून के तहत लगाए जा रहे हैं. लोगों को इम्प्रिजन किया जा रहा है, लंबे लंबे समय तक जेल में भरा जा रहा है. ये कॉन्टेक्स्ट है आज जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं. पर मैं ये भी कहूंगी कि प्रतिरोध कहीं गया नहीं, और हमारे देश में बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर, गांव के स्तर पर, नेशनल कैपिटल में प्रतिरोध की आवाज बुलंद अभी भी है, और वो हमें जीवन दे रही है और हमें उम्मीद दे रही है. चाहे वो सीए के खिलाफ हो, रेजिस्टेंस हो, चाहे वो स्ट्रगल हो फार्म लॉस के खिलाफ, जो हमारे जो किसान हैं उनके खिलाफ, जो उनके विरोधी कानून लाए गए थे, जो एंटी पीपल कानून हो, जैसे कि लैंड एक्विजिशन का कानून था, इन सब के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है वो खूब बुलंद रही है. ट्राइबल एरियाज में सब जगह पर रेजिस्टेंस कायम है. और आज हम देख रहे हैं कि चाहे कितना भी डराने की कोशिश है, लेकिन रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुई, दबी नहीं है. आज हमारे बीच ऐसा पैनल है जो कि 1857 की जो पूरी क्रांति थी, जो रिवोल्ट थी, उसके बारे में हमें और बताएंगे. हम सब ने उसके बारे में सुना है, पढ़ा है, पर क्या हम उससे और सीख सकते हैं, क्या महत्व है ऐसे प्रतिरोध का, ऐसी स्ट्रगल्स का, उसके बारे में बात, आज के परिप्रेक्ष्य के बारे में बात, आज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में बात करेगा पैनल हमसे. सबसे पहले मैं प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखेंगी. हम सब प्रोफेसर मुखर्जी को जानते हैं, साहित्यकार हैं. she was a professor of modern Indian history. She's one of the best known historians of India. She's written widely, she's widely recognized. हर स्ट्रगल में मृदुला अपनी आवाज बुलंद भी रखती हैं और साथ में बातचीत भी करती हैं, और हिस्ट्री में जो इतिहास है, वास्तव में जो घटनाएं घटी, उसके बारे में भी लोगों को अवगत कराती हैं. चाहे कोशिश ये रहे कि लेपापोती का काम चलता रहे, लेकिन वो अपनी बात बुलंद रखती हैं, रखती रहती हैं. और आज हम रिक्वेस्ट करेंगे मृदुला जी से कि जब हम
1857 1857 के रिवोल्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। आप हमें उसके बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आज इस से हम क्या सीख सकते हैं और आपको क्या लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में रेजिस्टेंस का महत्व है। Mridula, the floor is yours for the next 12 minutes. Thank you. Thank you, Anjali. I'm very grateful to Anhad and Satark Nagrik Sangathan for this opportunity to share my views with such wonderful audience and be part of such a fantastic panel. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आज ये मौका देने के लिए। समय बहुत कम है इसलिए मैं सीधी अपनी बात पे आती हूँ। तो बहुत सारी बातें आप समझ ही सकते हैं कि 1857 के बारे में हम कर सकते हैं। ये ऐसा एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी अब हमारे पास है। इस पे बहुत सारी पिछले 10-15 सालों में नई रिसर्च भी हुई है। जब 150वीं इसकी एनिवर्सरी मनाई गई थी उस वक्त बहुत सारे इंडियन हिस्टोरिकल काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च और कई सारे जगहों में और पूरे देश में बहुत सारी नई जानकारियां जो है हमारे सामने लाई गई और कई हिस्से ऐसे जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं था पहले कि 1857 के विद्रोह का हिस्सा थे उनके बारे में, और बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जिनके बारे में हमें नहीं मालूम था पहले, बहुत सारी जानकारी हमारे सामने आई है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि एक तरफ तो हमारा जो इतिहास का डिसिप्लिन है वो बहुत आगे पहुंचा है। बहुत सारे जो है नई नई चीजें और नए नए पर्सपेक्टिव्स जो हैं हम लोगों ने पूरे इतिहासकारों की जमात है उसने देश के सामने रखे हैं। पर दूसरी तरफ ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो इस वक्त बिल्कुल एम्बैटल्ड है और बहुत ही डेंजरस डिसिप्लिन है, क्योंकि हर रोज सुबह उठ के या रात को या शाम को जब भी आप खबर देखते हैं तो कुछ ना कुछ एक नया मुद्दा इतिहास के बारे में, चाहे वो कुतुब मीनार हो या लाल किला हो या कोई दिल्ली की कॉलोनीज के कौन से नाम हैं जो अच्छे नहीं लगते लोगों के कानों में अब, और इतने सुंदर सुंदर नाम, हॉर्स रानी, और हम जो सोचते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल नेम्स है वो लोगों को खलने लग गए हैं। तो एक तरह से रेजिस्टेंस जो है वो हमारे डिसिप्लिन को अगर हमने प्रैक्टिस करना है तो हमें साथ में रेजिस्ट करना बहुत जरूरी हो गया है। कोई भी इतिहासकार हिंदुस्तान में कम से कम और एक्चुअली दुनिया में ही बुरा हाल है इस वक्त हमारे डिसिप्लिन को लेके। अगर आप रेजिस्ट नहीं करने को तैयार हैं तो आप कोई भी सच्ची हिस्ट्री नहीं लिख सकते, क्योंकि इतना ज्यादा जो वो है एक तरह से अटैक है आपके डिसिप्लिन के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, ट्रूथ के ऊपर, और उसके बदले में पूरा एक माइथोलॉजी का एक जो है एक पूरा सिनारियो, एक पूरा नैरेटिव तैयार करके लोगों के सामने रखा जाता है। तो एक तो मैं अपने डिसिप्लिन की तरफ से ही कहना चाहती हूँ कि इट हैज बिकम अ डिसिप्लिन ऑफ रेजिस्टेंस। मुझे याद आता है जावेद अख्तर हमेशा कहते हैं जब उर्दू के बारे में बात करने लगते हैं तो कहते हैं उर्दू जो जुबान है उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो एम्बेडेड है, शुरू से ही इट हैज बीन अ लैंग्वेज ऑफ रेजिस्टेंस। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एज ए हिस्टोरियन फॉर द लास्ट 45-50 इयर्स इन इंडिया, मुझे लगता है कि हमारा जो डिसिप्लिन है उसके अंदर भी जो है रेजिस्टेंस एम्बेडेड है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कभी के पिछले मैंने कहा जैसे 45-50 साल में कि हम काउंटर नहीं कर रहे कोई ना कोई इस तरह के अटेम्प्ट को कि ये अभी भी जो मैं आपको बताऊं ये लाल किला और कुतुब मीनार को लेके जो बातें चल रही हैं, एक तो मुझे मजा बहुत आता है कि कुछ भी नई चीज नहीं ला पाते हैं लोग। ये पीएन ओक ने एक थे इनके एक इतिहासकार, तो उनको कहना बहुत मतलब बहुत तारीफ कर देनी होगी, एक शख्स कह सकती हूँ, एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे जिन्होंने ये हिंदुत्व लाइंस पे ये सब चीजें लिखनी बहुत पहले शुरू कर दी थी। 60s से उनकी किताबें और आर्टिकल्स इलस्ट्रेटेड वीकली में हम लोग पढ़ते थे जब बच्चे थे
टीन्स में मुझे याद है कि वो यही हमेशा कहते रहते थे कि लाल किला जो है शाहजहां ने नहीं बनाया और कुतुब मीनार जो है वो फलाने ने नहीं बनाई और पहले ये था और पहले वो था, एंड यूज्ड टू बी ट्रीटेड एज अ क्रैंक। मतलब इतने साल तो वो एक पूरे क्रैंक की कैटेगरी में थे, और अब वो ही जो है बगैर उनका नाम लिए उनके आइडियाज जो है आपको हिस्ट्री के फॉर्म में सामने लाए जा रहे हैं, उसके ऊपर एजिटेशन हो रहे हैं, और क्या हो रहा है कि आप पूछिए मत। तो 1857 की जो कहानी है ये एक वैसे बड़ी मजे की बात है। मैं इसके बारे में जब आज तैयारी कर रही थी बोलने की तो मैं सोच रही थी कि अभी तक 1857 को लेके क्यों नहीं जो है डिस्टॉर्शन सामने आई। इस पूरे जो वाकयात है इसमें कौन सी ऐसी बात है which doesn't lend itself to this kind of distortion? How is it? Is it that the facts are so loud and clear कि इसको डिस्टॉर्ट करना बहुत मुश्किल है? तो जैसे ही मैंने इन लाइंस पे सोचना जो है शुरू किया, तो जो जो चीजें मेरे दिमाग में आई मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ऑनस्लॉट तो वो सारा कम्युनल लाइंस पे है, तो हमें भी रेजिस्टेंस जो है उन्हीं चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपके सामने कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि 1857 का जो इतिहास है, मुझे लगता है कि ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस जो इंडिया में, जिसकी आप अभी बात कर रही थी अंजलि, जो एज ए हिस्टोरियन मेरा अपना मानना है कि हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस है इंडिया में। ये एक बड़ी गलत धारणा थी एक समय में कि चाइना में तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है पेजेंट रेजिस्टेंस की, पॉपुलर रेजिस्टेंस की, पर हिंदुस्तान वाज अ क्वाइटेस्ट this thing. We as historians, many of us have written and we have countered this. And there are different forms of resistance, but India also has a very powerful tradition of resistance right from ancient times. Romila Thapar has written extensively about traditions of dissent in ancient India. You know, how people resisted the caste system, how Buddhism itself was a revolt against the caste system, how within so-called Hindu traditions also there was a lot of dissent. So there is a whole tradition. Of course, Amartya Sen is now famous for bringing this particular aspect to our attention. But within that tradition of resistance, I would say 1857 has a very, very important position. And the proof of that is the way it stayed in public memory. You would be amazed as to how many folk songs there are on 1857. In fact, यूपी, बिहार, ये पूरा इलाका जहाँ गढ़ था, ये इस पूरे इलाके में जैसे एक 1857 के बारे में the word used was सन 57, and that immediately denoted 1857 revolt. Just the very word सन 57 had that resonance. कि 57 में क्या हुआ था? It was like लोग याद करते थे कि कोई बहुत बड़ा कोई हादसा हुआ था, कोई अर्थक्वेक हुआ था, तो सन 57 उसी तरह से एक मार्कर ऑफ टाइम था. It was such a big event in popular memory. So we find archives में से लोगों ने, सहमत ने इनफैक्ट छापे हैं गाने भी उसके इकट्ठे करके कई साल पहले, और लोगों ने भी बहुत रिसर्च करके ये चीजें सामने लाई हैं कि पॉपुलर मेमोरी में कैसे अभी तक आप कई गांव में आप जाइए, आप यहाँ से दिल्ली से कोई 30 किलोमीटर दूर इधर बल्लभगढ़ चले जाइए, उधर पाली गांव है, उसके अंदर जो है 1857 के शहीदों की जो है गांव वालों ने मूर्तियां बनाई हुई है पूरी। कहीं कहीं आप चले जाएंगे छोटी छोटी जगह में, वहां पे 1857 का जो शहीद है उसकी कोई ना कोई छोटी मोटी उसकी मेमोरी में कुछ बनाया गया होगा। तो ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं जो एम्फसाइज कर रही हूँ 1857 का बहुत बड़ा एक है। उसके कई कारण हैं, और एक बड़ा कारण तो यही है कि इतने बड़े पैमाने पे रिवोल्ट ये हुआ था। जब से अंग्रेज आए तब से उनके खिलाफ रिवोल्ट होते रहे। कैथलीन गफ ने बहुत साल पहले डॉक्यूमेंट किया था कि पहले 100 साल में हर साल एक रिवोल्ट होता था इंडिया में। कभी यहाँ होता था, कभी साउथ में, कभी नॉर्थ में, कभी वेस्ट में, कभी कोई छोटी जगह में, कभी कोई बड़े पैमाने पे। कभी सिपाही रिवोल्ट करते थे, कभी साधु रिवोल्ट करते थे, कभी जमींदार रिवोल्ट करते थे, पर रिवोल्ट चलता रहता था कहीं ना कहीं। एवरी ईयर शी डॉक्यूमेंटेड देयर वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये ट्रेडिशन देयरफॉर रेजिस्टेंस ऐसे ही हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं।
पर वो सारा कल्मिनेट किया 1857 में आके, 1757 से लेके 1857 का पूरा वो जो था, और बहुत बड़े पैमाने पे ये रिवोल्ट हुआ। नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ये सारे इलाके तो बहुत जोरों से अफेक्टेड थे। साउथ इंडिया में म्यूटेड था, और इधर पंजाब वगैरह में भी म्यूटेड था, पर बाकी जो सारा इलाका था, हर जगह आपको छुटके फुटके इंसिडेंट्स कम से कम मिल जाएंगे, और बड़े पैमाने पे एक रिबेलियन का इसने शक्ल लिया। इट वॉज बोथ अ सोल्जर्स रिबेलियन एज वेल एज अ पेजेंट रिबेलियन। ये इसके दो खास कैरेक्टरिस्टिक थे, और कई शहरों में, जैसे दिल्ली में, जैसे कानपुर में, जैसे लखनऊ में, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे शहरों में इट वॉज ऑल्सो एन अर्बन रिबेलियन। ये इसके खास कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो इसके बहुत पावरफुल इम्पैक्ट सोसाइटी पे था। दूसरी चीज इस पे जो थी कि इसका रिप्रेशन जो था वो बहुत वायलेंट था। 1 लाख से ज्यादा जो है लोग इसमें मारे गए थे। रेजिस्टेंस भी बहुत स्ट्रांग थी। अंग्रेज मतलब ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर्स थे, अंग्रेज और हिंदुस्तानी जो उधर भी लड़ रहे थे, वो भी बहुत बड़ी बड़ी तादाद में लॉस ऑफ लाइफ हुआ था। तो ये कई ड्रामेटिक कारण थे जिसके कारण 1857 का रिवोल्ट जो है पॉपुलर मेमोरी में, हमारी हिस्टोरिकल मेमोरी में इसकी एक खास जगह है एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ रिप्रेशन। यूपी वगैरह में कई जगह में हम लोगों ने एनालाइज किया है कि उस 1857 के बहुत दिन बाद तक कोई रेजिस्टेंस नहीं निकली। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी भी एक जो थी, वेरी स्ट्रॉन्ग रिप्रेशन की जो मेमोरी थी, वो भी पब्लिक माइंड में थी। तो ये दोनों चीजें जो है 1857 को एक तरह का कैरेक्टर दी। पर जिस बात पे मैं आना चाहती हूँ, मेरा दूसरा और जो पॉइंट है गिवन द टाइम, वो ये है कि इस रिबेलियन में हम जो देखते हैं कि ये रिबेलियन में हिंदू, मुस्लिम, रिलीजियस आइडेंटिटी, ये सब सवाल जो थे ही नहीं। I don't know how to explain this. एक तो हम कहते हैं ना लोग मिल के लड़े, तो हम अज्यूम करते हैं कि लोग अलग थे और उनको मिलना पड़ा और मिल के फिर लड़े, मतलब एक एफर्ट करके लोग इकट्ठे आए। 1857 के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई एफर्ट नहीं था, क्योंकि सोसाइटी अभी डिवाइड नहीं हुई थी। ये ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इसके बाद शुरू होती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अभी लोगों में आपस में ये कॉन्शियसनेस ही नहीं थी कि तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूं, मैं फलाना हूं, इसलिए हमें लड़ने के लिए कोशिश करके इकट्ठा होना पड़ेगा। हम ये नहीं भूलें कि आज के ही दिन 1857 में 11 मई की सुबह या आधी रात को जो मेरठ से सिपाही रिवोल्ट करके वहां रिवोल्ट शुरू करके वहां से चल के अपने घोड़ों पे जो आए और जमुना उन्होंने पार की नदी और सीधा गए बहादुर शाह जफर के कोर्ट में, उनको उठाया लाल किले में और कहा कि तुम हमारे लीडर हो। तो ये हिंदू थे, ये जो सिपाही थे, और वो मुगल बादशाह का एक रेमनेंट था जिसके पास कोई पावर भी नहीं थी, और एक सिंबल था हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी का। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, ये मुगलों का, जैसे आज कहते हैं कि हमारे ओप्रेसर्स थे, उनसे हमें अब लिबरेट करना है अपने आप को, हमारी सड़कों को लिबरेट करना है मुगल्स के ऑपरेशन से। आज ये सड़कें के नाम बदल के हम अपने आप को लिबरेट करने जो जा रहे हैं आजकल दिल्ली में। तो ऐसी कोई सिपाहियों में तो कोई फीलिंग हमें दिखाई नहीं देती। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जैसे ये रिबेलियन फैलता है, कहीं पे कुंवर सिंह उसका लीडरशिप ले रहे हैं, वो एक जमींदार है बिहार पे, और कहीं पे जो अवध की हजरत महल जो है वो उसके लीडरशिप में आ जाती हैं, कहीं पे तांतिया तोप है, कहीं पे रानी झांसी है, आप गिनते जाइए। और उसके नीचे लेवल पे अगर आप जाइए, जनता के लेवल पे, सोल्जर्स के लेवल पे, जनरल्स के लेवल पे, तो बिल्कुल मिक्स्ड पिक्चर है। ये मैं जो एम्फसाइज करना चाहती हूँ, ये इशू ही नहीं था। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, यहाँ पे आपको मालूम है कि बख्त खां, उन्होंने यहाँ पे वो एक अंग्रेजी फौज के अफसर थे जो रिबेल किए, और बरेली से वो यहाँ दिल्ली आए अपनी फौज लेके, और दिल्ली का इफेक्टिव रूलर 3 महीने के लिए, जुलाई से लेके सितंबर तक बख्त खां थे।
अब उनके अगर आप कुछ प्रोनाउंसमेंट्स देखिए, जैसे ईद के वक्त उन्होंने अनाउंस किया कि देयर विल बी नो काउ स्लॉटर. So many, these are very spontaneous, natural things. ये एक communal amity के symbols थे, जो कि natural चीजें थी, जो बहुत बार होती थी, जिसमें कोई नई बात नहीं थी. जैसे कि हमको कितने लोगों को पता है कि अकबर जो है वो गंगा जल पीते थे, और चाहे वो साउथ इंडिया में अपना एक्सपीडिशन कर रहे हैं, उनके लिए गंगा जल यहाँ से जाता था. अब वो क्या उनका धर्म था और क्या नहीं था, ये तो उन्हीं को वही बता सकते हैं. पर इस तरह के कितने एग्जाम्पल्स हैं ऑफ ट्रेडिशंस which people did not think of as Hindu tradition or Muslim traditions, like that, because there had been such a lot of mixing in society. आपकी जो elite थी उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, आपके जो सोल्जर्स थे उसमें भी थे, आपके जो किसान थे उसमें भी थे. हर लेवल पे सोसाइटी में मिक्सचर था. कहीं पे आपका जनरल मुसलमान है और आपके सोल्जर आधे मुसलमान है आधे हिंदू है. हमने कहीं नहीं सुना कि ये इशू जो है लोगों को डिवाइड किया. और जब हम ये भी सुनते हैं कि रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट था लोगों के कॉन्शियसनेस में, कि वो जो बुलेट्स थी उनको खोलने का वो जो था, बाहर का शेल खोलना था, तो उसमें ये र्यूमर था कि ये काऊ की इसमें चर्बी है या सुअर की चर्बी है. तो रिलीजियस कॉन्शियसनेस था, पर कम्युनल कॉन्शियसनेस नहीं था, आपस में फर्क का कॉन्शियसनेस नहीं था. तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 1857 के इतिहास को अगर मैं कम्युनल लाइंस पे लिखने की कोशिश करूं तो मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं, क्योंकि जैसे जैसे कैरेक्टर आपके सामने आते जाते हैं, वो हर तरह के कैरेक्टर आपके सामने आते हैं, हर तरह की चीजें आपके सामने हो रही है. आप बरेली की बात करें तो वहां के जो जमींदार थे बड़े, उन्होंने वहां रिबेलियन कर दिया, और रोहिल्ला चीज थे वो. और मिक्सचर, रेशियल मिक्स भी देखिए, ये बख्त खां भी कहते हैं रोहिल्ला थे, पर इनकी माँ जो है वो अवध की कोई प्रिंसेस थी. हर तरह का मिक्सिंग था, रेशियल मिक्सिंग, रिलीजियस मिक्सिंग. तो इंडियन सोसाइटी का पिक्चर जो हमें 1857 का rebellion, when we study the picture which we get of Indian society in 1857, is a very composite picture. It is at the fag end, and still at the beginning of the colonial full conquest. उस तरह का अभी उसके खासकर ideological terms में नहीं हुआ था, वो hegemony नहीं थी. तो जो मैं emphasize करना चाह रही थी कि इनफैक्ट 1857 के रिएक्शन में कम्युनल पॉलिसी शुरू होती है. जब अंग्रेजों ने एक बार 1857 को दबा लिया, तब उन्होंने जब एनालाइज किया तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये रिबेलियन जो है ये मुसलमानों का किया हुआ है. भाई वो आफ्टर ऑल मुगल बादशाह को, बहादुर शाह जफर को, वो आपको मालूम ही है, उनके सारे बेटों को, तो 2 बेटों को आंखों के सामने मार दिया, उनको ले गए बर्मा, वहां पे एग्जाइल कर दिया, वही मर गए. तो उनके दिमाग में ये बात थी कि ये लॉस्ट पावर का एक एंगर है मुस्लिम्स में, और ये रिबेलियन का जो लीडरशिप है और जो इसके पीछे जो है मुस्लिम्स थे. तो सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करना शुरू किया 1857 के बाद, और पहले 10-15 साल जोरों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ. आर्मी में से, सिविल सर्विसेज में से, हर जगह जो है मुस्लिम्स को एकदम बाहर कर दिया गया. इससे जो है मुस्लिम समाज के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ, और वो एक इनवर्ड लुकिंग आउटलुक उनमें आ गई. उन्होंने भी कहा कि अंग्रेजी को बॉयकॉट करो, अंग्रेजी इसको हुकूमत को, अंग्रेजी जुबान को, जो मॉडर्न एजुकेशन है. तो एक तरह से जो बैकवर्डनेस वाला इशू बाद में बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, वो यहीं से शुरू होता है. पर जहां तक अंग्रेजों का सवाल था, उनके लिए तो ये बिल्कुल एक मैनिपुलेटिव और अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिसी थी. जब उन्होंने देखा 1870s और 1880s में कि जो नई मिडिल क्लास हिंदुओं में से निकली है, उनमें नेशनलिस्ट आइडिया पैदा हुए हैं. 1870 सामने आने हो जाते 1880s तक. तो और तब उन्होंने मुस्लिम एलीट को पेट्रोनाइज करना शुरू किया, और उनको ये समझाना शुरू किया कि
अगर ये जो हिंदू मिडिल क्लास जो है नेशनलिज्म की बातें करती है, अगर नेशनलिज्म यहाँ पे जीत गया, ये तो मेजॉरिटी है और तुम माइनॉरिटी रह जाओगे, ये सब जो हम कम्युनल आउटलुक के बेसिक जो डिजिट्स है वो उन्होंने दिमाग में डालने शुरू किए। तो ये सारी चीज जो है 1857 के बाद शुरू होती है। पहले 10-15 साल तो मुस्लिम्स के खिलाफ बहुत हैवी डिस्क्रिमिनेशन हुआ और फिर उनको कोशिश करनी शुरू हुई कि उनके एलीट को जो है उनको कोऑप्ट किया जाए ताकि वो एक बुलवाक बन सकें इसके खिलाफ। तो ये पूरी जो कहानी है इसमें 1857 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इतिहास समझना, उसके बारे में और जानना। मैं तो एक दो बातें आपको बता पाई हूँ, पर इतनी रिच हिस्ट्री है इसकी, उसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि जो हीरोइक रेजिस्टेंस विच वी सी in 1857 is also something which has to be remarked. The way ordinary people revolted, the kind of oppression which they withstood, the long years of rebellion. In many parts of India, the rebellion lasted not just 1 year, it lasted deep into 1859. Many of the rebels were still running away and they were hiding and were only caught in 1859. Some of the very prominent ones also. Some couldn't be caught at all. Begum Hazrat Mahal जैसे Nepal चली गई. She took refuge over there. So I will stop here. I'm sure I've taken a little more than my time, but it is an exciting story and I get excited about it. So you'll excuse my extra time. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया मृदुला। और इतनी सारी चीजें आपने हमें इतने छोटे समय में बताई एंड सच वंडर। Thank you so very much. I know that we have people from different parts of the country. They will need a short translation as well. I'll try to keep it really short. But Mridula, in a very, very comprehensive manner, has talked to us about the salient features which are really of relevance today of the 1857 revolt. Of course, she started by reminding us how history itself has become embattled, and how, whether it's Qutub Minar or it's Lal Killa or it's Taj Mahal or it's names of streets and mohallas and colonies in the country, how all of these things have also become battlefields. And she talked about how the discipline of history has become the discipline of resistance. So it's therefore been very, very interesting to hear her analysis. She talked about why, and in fact, she said that as she was thinking of what she should talk about today, she wondered why 1857 has not been made and appropriated in the current narrative and misappropriated by divisive forces. And she talked about 5 or 6 very important points. One thing that she said is that India has had a very strong and long history of resistance, and even within religions there has been resistance. Even within the Hindu religion, she said that there has been resistance. But she said if we look at the 1857 revolt, there were many things that contribute to how significant that resistance was and what really prevents that resistance from being misappropriated, the narrative of that resistance. One is that there is a very strong and popular memory of the 1857 revolt, whether it is in the form of folk songs, which are sung even to this date, poetry. We've खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, or any number of poems, songs which have been kept alive even till today, idols of martyrs of the revolt that exist even to this date. The fact that the revolt actually took place across the length and breadth of the country. At most states, it kind of took place. All of this left a very strong memory of the revolt, which is not easy to distort.
It was something that involved people from different walks of life, peasants, soldiers, it was even an urban rebellion, according to Mridula. And it was a very violent repression when the repression took place. More than 1 lakh people were killed. And therefore, the memory of this is extremely strong, not easy to tamper with. And it became a symbol of not just resistance, but also repression. And it's something that has stayed with people, that the entire episode and how it unfolded is something that most people have some understanding of, and there is a strong memory. The other issue, which I think Mridula highlighted and which is very important, is that there was no question of any Hindu, Muslim identity, sort of religious identity coming in as far as the 1857 revolt was concerned. In fact, she said that this was something that took place in the pre-divide and rule colonial policy era, and where no such consciousness really existed. So what Mridula says is that, yes, the fact that the cartridges had beef or pig, this thing was something that triggered things, but it was religious consciousness. It was not communal consciousness, according to her. And she talked about how even Hindu soldiers approaching Bahadur Shah Zafar and him being declared as the Emperor of India. So not really thinking about, is this a Mughal emperor? Is this, the religion of the emperor, and so on. So all of this does not lend itself to communal distortion. It was something that mixed racial, religious identities. And in fact, it was in reaction to 1857, Mridula reminded us, that communal policies became really pronounced even by the British, because that was really when, for the first time, Muslims really were discriminated against. They were removed from the army. They were actively discriminated against. There was a period of about 10, 15 years, which had a very strong and a very negative effect on the Muslim community as well. But it was certainly not in 1857, the revolt, which also was a long revolt. It was not a few days or a few months. It was into years that revolt ran, which was a really heroic resistance, as Mridula calls it, and also involving ordinary people. It was a long rebellion. It was a historic, it was a heroic resistance, and that's something that has really helped maintain the integrity of that memory as well. And it's not something that lends itself to communal distortion. But thank you, Mridula, for bringing out the nature of the 1857 revolt. We all remember it. We all remember having read about it. We all have some memory of some song, some poem somewhere of that resistance, and how we can draw on it, and what really can finally lead us towards a progressive space and where we all really want to move. So thank you very much, Mridula. And I'm going to move to the next speaker without further ado. We have with us Arfa Khanum Sherwani. She needs no introduction. Arfa is one of our bravest, one of our most outspoken journalists, who doesn't mince words, who calls out injustice and discrimination where and when she sees it. Arfa, we are talking about the importance of resistance. We are talking about keeping resistance alive. आज हम लोग ये बातें कर रहे हैं. अभी हमने 1857 का जो रिवोल्ट था उसकी वर्षगांठ है, तो उसके अराउंड हम लोग बातचीत कर रहे हैं. मृदुला ने अपनी बात रखी है और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी बात रखें अगले 10 से 12 मिनट में. अरफा, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस
जब हम बात करते हैं the importance of resistance, the need to resist, how do we keep this resistance alive in these current challenging times? How do we protect democracy by keeping resistance alive? We know that there is a very important role that the media has to play. So we also want to hear from you what role the media can play, what are the current challenges that you see in the media today when we look to it as a society to keep resistance alive, and of course also share with us your thoughts and experiences. So the floor is yours, Arfa. Thanks. Thank you very much, Anjali, Shabnam Hashmi, Anhad, all the people who have joined us, more than 100 people out here. I think more than speaking, I needed to hear all of you, because I think for the first time in my life, at least in the last 8 years and more than 20 years of my journalism, पहली बार मुझे ये फील हो रहा है कि मेरे पास सिर्फ सवाल ही सवाल हैं और जवाब नहीं है. अक्सर ये होता रहा कि मुझे लोग कहते थे कि मैं इतनी डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हूँ कि ऐसी आशावादी व्यक्ति के बिल्कुल घने अंधेरे में कहीं ना कहीं एक उम्मीद का एक चिराग जलता हुआ हर जगह देख लेती हूँ. आज पहली बार ऐसा लगा, लगभग पिछले 1 महीने में मैं आपसे, अंजलि आप चाहती हैं मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बातचीत करूं? As you like, Arfa, whatever. दोनों में बोल सकती हैं, एक में बोलेंगी तो अनुवाद भी मैं कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम. तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी कि पहली बार जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि उम्मीद बहुत कम हो गई है, इतनी कम हो गई है, खासकर उत्तर प्रदेश इलेक्शन में. मैं इतना इन्वेस्टेड थी एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सिटीजन, और ये मैं इसलिए भी आपको लेके चल रही हूँ. 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका है उस इलेक्शन के रिजल्ट्स को, बट स्टिल आई थिंक द कंट्री हैज नॉट मूव्ड पास्ट उत्तर प्रदेश, एंड आई थिंक द करंट पॉलिटिक्स, not only today, but even 5 years down the line, let me tell you, till we have the next Uttar Pradesh elections, this election results is going to dominate our politics and society. And that is why you see such sharp escalation in violence, in extremism, that is now bordering fascism, if we have not already entered the fascist state. सो ये प्रॉब्लम ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन को समझना बहुत जरूरी है. मैंने करीब अक्टूबर से इलेक्शन कवर करना शुरू किया, बल्कि सितंबर में कहूंगी, सितंबर से मैंने शुरू किया. 6 महीने से ज्यादा मैं उत्तर प्रदेश का बिल्कुल लेंथ एंड विड्थ ऑफ उत्तर प्रदेश आई कवर्ड. आई ऑल्सो कम फ्रॉम द स्टेट, एंड आई न्यू एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट वर्किंग एंड रिपोर्टिंग ऑन नरेंद्र मोदी's government and sitting in New Delhi working from here, from the national capital, how important that election was for me as a political journalist, as a citizen, and also Narendra Modi and his party and RSS knew how important this election was. So the point was not, it didn't get missed by anybody. हमें भी पता था, उन्हें भी पता था. वो जिस मजबूती के साथ वो इस इलेक्शन को लड़े, साम दाम दंड भेद जिसे जो पॉलिसी कहा जाता है, उसी नीति के साथ सब कुछ अपनाकर, मुझे इतनी हैरानी हुई जब मैं जमीन पर उतरी. मैंने देखा बहुत एक बदलाव की एक बयार थी, एक हवा चल रही थी. लोग इस कदर परेशान थे कि मैं कहती हूँ आपसे कि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ. 1992 का उत्तर प्रदेश भी मैंने देखा. मैंने राम मंदिर का वो पूरा जो आंदोलन चल रहा था उस दौर का भी उत्तर प्रदेश देखा. उससे भी कहीं ज्यादा खराब हालात थे, इकोनॉमी के हालात थे, सोसाइटी के, पॉलिटिक्स के, और ऐसा लग रहा था कि लोग इतने परेशान हैं कि वो अपने लिए एक बदलाव चाहते हैं. और खासकर आप ये समझिए कि ये पोस्ट कोविड के बाद की दौर के इलेक्शन था ये. यानी वो लोग जिनकी परिवार में 5 लोग मर गए, 5 लोग कोविड से मर गए, कोविड से नहीं मरे, वो सरकार की लापरवाही से वो लोग मरे, क्योंकि सरकार ने वक्त पर वो फैसला नहीं लिया जो उन्हें लेना चाहिए था. उस घर के लोगों ने 5 किलो पे अपना वोट दे. जिस घर के 5 सदस्य मर गए, 5 किलो राशन पे वोट. मैं उन लोगों से भी शिकायत नहीं करती जिन्होंने, हो सकता है उन्हें 5 किलो राशन की जरूरत, लेकिन मैं उन लोगों से खास मेरी शिकायत रहती है, खासकर वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम पड़ोस से नफरत की वजह से कि मुसलमान अनुशासित रहे, अगर कोई और पार्टी आ गई तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, मुसलमान टेक ओवर कर रहे हैं. तो ये जो पूरा जो कि जमीन पे नजर आ रहा था कि जो फोबिया है वो इस हद तक so deep seated in people's minds and hearts that they would rather have their family members die, they would rather choose a dark, economically and socially dark future for themselves than have a political party which might be relatively better to Muslims than the current ruling party. ये पूरा जो एक्शन है, मैं समझती हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र के लिए पहला इन्वेस्टमेंट है. ये
उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। आज आप बात करें रेजिस्टेंस की, मैं आप उत्तर प्रदेश ले जा रही हूँ खासकर ये बताने के लिए कि हमें समझना जरूरी है कि हम रेजिस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं। अंजलि एंड डॉक्टर मुखर्जी, समझना बहुत जरूरी है कि हम जब रेजिस्टेंस की बात करें तो खला में नहीं है, वो स्पेस में नहीं, हम किन लोगों के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, what are we faced with. So if we actually know what the problem is, maybe it's going to be little less difficult for us to fight with it then. So this is what we are faced with, कि जिन लोगों के घरों में लोग मर रहे हैं वो 5 किलो राशन वोट दे रहे हैं, जिन बच्चे 4 बच्चे 2 स्कूल 2 कॉलेज में हैं, ना स्कूल के लिए वोट करें ना कॉलेज के लिए नौकरी के लिए वोट करें, सिर्फ उनके पड़ोसी को एक पॉलिटिकल पार्टी और नेता वो उनको चेक में रखेगा, वो उनको डिसिप्लिन रखेगा, इसके लिए वोट दे रहे हैं। तो क्या तो किसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं हम? क्या भाजपा के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, या ये फासीवादी मानसिकता हमारे लोगों के में और उनके मस्तिष्क में जो घर कर गई है, क्या उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं? आर वी फाइटिंग अ पॉलिटिकल फोर्स और वी फाइटिंग दिस न्यू पब्लिक दिस पॉलिटिकल फोर्स हैज क्रिएटेड? क्योंकि अब आप ये समझिए कि ये जो हिंदू राष्ट्र का जो पहला अनाउंसमेंट उत्तर प्रदेश से है, इसने फुट सोल्जर्स तय किए हैं, और ये सिर्फ बीजेपी आरएसएस के फुट सोल्जर्स नहीं है, ये आम लोग हैं बिल्कुल, जो आपके बराबर में ट्रेन में बैठे होंगे, में बैठे होंगे, पिक्चर हॉल में अगर देख रहे हैं। फिल्म से मुझे याद आया, अब भारत ने सबसे, ये भी एक अचीवमेंट के नाम लग गया कि नाज़ी जर्मनी के बाद सबसे सक्सेसफुल फांसीवादी फिल्म बनी है वो भी भारत में बन गई है, वो कश्मीर फाइल के नाम से। मैं एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पे मेरा ये भी काम है कि तमाम तरह की हैपनिंग्स हो रही है मैं उस पर रिपोर्ट करूं, और अगर ये एक पॉलिटिकल कल्चरल स्फीयर में ये फिल्म थी, इसको सिर्फ कल्चरल नहीं कहा जा सकता, सिर्फ मनोरंजन का ये जरिया नहीं थी। मेरा ये काम था कि मैं फिल्म जाके देखूं क्योंकि मुझे उस पर टिप्पणी करनी है। आप यकीन नहीं करेंगी, यहाँ मौजूद 100 से ज्यादा लोग, आई डिड नॉट फील दैट आई वाज सेफ इनफ टू एंटर a cinema hall, sit there with people and watch that film, because I am a marked person. They have made me a symbol of hatred. I don't know कौन सर फिर आके मेरे सर पे क्या मार जाएगा, कौन मेरे साथ किस तरह का वायलेंट बिहेवियर करेगा। पहली बार एक पब्लिक स्पेस मेरे लिए अनसेफ हो गया, और मेरे लिए अनसेफ हो गया एज अ पब्लिक फिगर, बट लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो बिकेम एन अनसेफ प्लेस फॉर hundreds and thousands of Indian Muslims. एक और पब्लिक स्पेस उनसे छीन लिया गया। अब आप ये सोचिए कि अगर एक दाढ़ी वाला जो विजिबल मुस्लिम है, बुर्के वाली हिजाब वाली औरत, या इस तरह का परिवार है जिसमें 5 लोग हैं और एक लड़की हिजाब ओढ़ती है, अगर वो फैमिली देखने जाना चाहती है कश्मीर फाइल, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए आप, जहां उस तरह के हिंसक भाषण दिए जा रहे हैं उस फिल्म के बाद, जिस तरह के लोगों के पैशंस, उनके अंदर जो हिंसा की एक भावना जगाई जा रही है, ये क्या गारंटी है कि वो परिवार सुरक्षित रहेगा अगर वो फिल्म देखने जाएगा? दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट। इसके खिलाफ हमें रेजिस्ट करना है। तो इसलिए कि आप ये देखिए कि पूरा का पूरा एक पब्लिक स्पेस जो माना जाता था कि भारत में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन फिल्में एक राहत का जरिया होती थी, जहां पर यू विल लेट योर हेयर डाउन फॉर सम टाइम, और आप भूल जाएंगे कि सड़क पे बाहर मारकाट हो रही है, लिंचिंग हो रही है। थोड़ी देर के लिए एक रूमानी माहौल में आप बैठे हैं और देख रहे हैं कि स्विट्जरलैंड की वादियों में साड़ी पहन के जो हमारी एक्ट्रेस है, हीरोइन है, वो टहल रही है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। लेकिन अब वो स्पेस भी ना तो साइकोलॉजिकली हमारे लिए सेफ रहा कि वहां भी हमें हिंसा देखनी है, वहां भी मारकाट देखनी है, वहां भी ट्विस्टेड फैक्ट्स देखने हैं, वहां भी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा देखना है। और इसका सक्सेस का मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कितनी सक्सेसफुल है ये फिल्म। ये इसके फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो देख रहे होंगे वो बहुत खुश होंगे इस बात से, और जाहिर है ये हमारी तकलीफ की वजह भी है। हमने देखा कि किस तरह से भारत की सरकार ने, खुद देश के प्रधानमंत्री ने उस फिल्म को अपना चेहरा दिया, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। आपको याद नहीं, आई डोंट नो द लास्ट टाइम आई रिमेंबर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, any prime minister of India who came forward to endorse and publicize a film. That was done by Narendra Modi. अब प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन्होंने उसको टैक्स फ्री बना दिया, उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को छुट्टी दे दी कि आप देख कर आइए, फ्री स्क्रीनिंग जो है फिल्म की शुरू कर दी। और एक उसी दौरान जब ये सब हो रहा था, मैं अपने फेसबुक वॉल पे गई और मैंने देखा, मैंने एक तरह से एक सर्वे किया सिर्फ अपने फेसबुक के जरिए ही, तो 95% लोग, 95% लोगों ने उस दिन जब मैं देख रही थी, कश्मीर फाइल्स के 2 हफ्ते के रिलीज के अंदर की बात है ये, उन्होंने अपना स्टेटस लगाया हुआ था
कश्मीर फाइल्स को लेके उनकी कोई राय थी, और उन 95% में बेशतर लोगों ने, 80% से ज्यादा लोगों ने उस पर पॉजिटिव ओपिनियन था उनका कि हाँ, जो सच हमसे अब तक छिपाया गया वो हमें आखिरकार पता चल गया है। इनमें वो लोग भी शामिल थे जो कि न्यूज चैनल्स में काम करते हैं, क्योंकि जाहिर है मैं एक पत्रकार हूं तो पत्रकार दोस्त भी रहे होंगे उसमें। उनमें वो लोग भी शामिल थे जिनको मैं रीजनेबल लोग कहती हूँ, जो जिनके ओपिनियन, मतलब वो उतने कोई मुस्लिम हेटिंग लोग नहीं है। ठीक है, अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, हो सकता है कि भाजपा के वोटर भी रहे हों, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। उनको मैं फांसीवादी कम से कम नहीं कहूंगी, उनको मैं बहुसंख्यकवादी भी शायद ना कहूँ। उस तरह के रीजनेबल लोगों तक भी ये फिल्म पहुंच चुकी है, और इसकी जो भूख और प्यास है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब एक और फिल्म आ गई है, अब कन्वर्जन के नाम से। यानी ये मामला यहाँ पर थमेगा नहीं। कश्मीर फाइल्स, उसके बाद कन्वर्जन, उसके बाद बहुत सारी फिल्में होंगी, कमर्शियली सक्सेसफुल, पॉलिटिकली सक्सेसफुल, सोशली सक्सेसफुल। पैसा भी लगाया जाएगा, मैन पावर भी लगाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश का वोटर, उसके खिलाफ रजिस्ट करना है। ये वो लोग जो ये कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म देख रहे हैं और इस तरह की फिल्मों की जो अब बाढ़ आएगी, उनके खिलाफ रजिस्ट करना है। अब रजिस्ट करने का तरीका कई हो सकते हैं। रजिस्ट करने का तरीका ये भी हो सकता है कि इन लोगों को इस मिस इन्फॉर्मेशन के अंधेरे से निकाला जाए, इनको अपनी तरफ वापस लाने की कोशिश की जाए। क्या हमारे आपके पास वो रिसोर्सेज हैं कि हम इस तरह की कोई फिल्म बनाए दूसरी जो काउंटर कर सके? क्योंकि देखिए, फिल्म बैनिंग के तो मैं भी खिलाफ हूँ। मैं भी ये नहीं समझती हूँ कि किसी राइटर को, किसी पत्रकार को, किसी किताब को बैन किया जाए। मेरा भी यही मानना है कि एक किताब का जो बदल है, जो उसका रिएक्शन है, जो उसका जवाब है, वो एक किताब ही हो सकती है, और फिल्म का जवाब भी फिल्मी हो सकती है। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या अगर मैं या आप फिल्म बनाते हैं उसको एंडोर्स करेंगे? क्या उतनी ही सरकारी मशीनरी हमें मिलेगी, या हमारी फिल्म को 5,000 लोग देखेंगे और फिल्म वो डूब जाएगी? या हो सकता है उसको सेंसर बोर्ड से उसे बाहर निकलने की इजाजत भी ना मिले। अभी भी मैं आपको दर्जन भर फिल्मों के नाम गिना सकती हूँ जो कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाई फिल्में। तो ये जो रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा, जो हमें करना है, वो इन सब के खिलाफ करना है। जो परपेचुअल वायलेंस का पूरा जो साइकिल हमारे सामने है। मैं रोज अपने स्टूडियो में बैठती हूँ और बताती हूँ कि देखिए, आज जगह ABCD 1 2 3 4 4 जगह दंगे हो गए, इतने लोग यहाँ जख्मी हो गए, इतने लोग मर गए। अब ये त्योहार तो गुजर गया, इसमें इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोगों के घरों पे बुलडोजर चल चुका है। अब एक नया त्योहार आने वाला है, तो अब उसके लिए तैयार करते हैं। तो पहले तैयारी जो है वो हिंदू फेस्टिवल्स में क्या होगा, फिर मुस्लिम फेस्टिवल्स में क्या होगा। हम जानते हैं कि राजस्थान में देखा कि ईद पे भी वहां पर दंगा हो गया, और दंगा मेरे ख्याल से कहना ये बहुत, इट विल बी अंडरमाइनिंग एंड अंडर stating what exactly is happening in India right now. I don't think it is communal riots. I don't think it is communal violence. I think it is state oppression of India's Muslims. इंडियन, जो भारतीय मुसलमानों का, ये भारत राज्य के जरिए सीधे सीधे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी प्रताड़ना हो रही है। क्योंकि स्टेट के एक मशीन के तौर पे हमारे सामने एक बुलडोजर लाया गया है कि ये बुलडोजर इज अ न्यू सिंबल ऑफ मुस्लिम ऑपरेशन, कि आप बोलेंगे तो ये आपके सामने आएगा। आप जो लोग हैं, जो भीड़ है, इन सब भीड़ उसे अपने इलाकों में आने दीजिए। वो आपको उकसा रही है, आपको कुछ नहीं कहना है। वो कहती है, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ अपने मुंह से कि किस तरह से हमारी देश के युवा बाकायदा मुस्लिम गालियों से भरे हुए गानों पे नाच रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये देखकर अंजलि जी की हम मेरे ही देश के युवा, आप ये सोचिए कि वो हमारी युवा पीढ़ी है, वो हमारे देश का आज भी है, हमारे देश का कल भी है। उसमें सिर्फ और सिर्फ गालियां थी और संगीत था। यानी गालियों के साथ संगीत, और सीधे सीधे मुस्लिम विरोधी गाली, मतलब मुल्ला कह के गाली प्लस गाली, और युवा जो है हमारे ऐसे नाच रहे थे। उनके शरीर में जो हिंसा और नफरत के वो इंजेक्शंस लग गए हैं, जिनमें वो नशे में इतने चूर हैं, वो मुस्लिम नफरत में इतने चूर हैं कि उन्हें पता भी नहीं है कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। हो सकता है अपने पड़ोसी के साथ जो कुछ कर रहे हो, लेकिन अपने साथ वो क्या कर रहे हैं ये उनको पता नहीं है। तो वो भीड़ को गुजर जाने दीजिए, आपको कुछ नहीं कहना है। अगर वो भीड़ आपके साथ हिंसा भी करती है तब भी आपको कुछ नहीं कहना है। अगर आपने मिनिमम रिएक्शन का इंतजार किया जाएगा कि अगर एक महिला, एक पुरुष, एक बच्चे ने एक पत्थर फेंक दिया तो अगले दिन सरकारी बुलडोजर आके आपके घर को ढा देगा।
यानी एक दुकान का मैं आपको जिक्र बताना चाहती हूँ, खारगोन का जिक्र है। वो एक केमिस्ट था, उस केमिस्ट ने बताया कि उसकी दुकान में ये भी इंतजार नहीं किया गया कि हजारों रुपए की दवाइयां मौजूद थी। उस पूरे इलाके में अकेली केमिस्ट की दुकान थी वो, कि ये भी इंतजार किया जाता कि चलिए दवाई निकाल लेते हैं और फिर इस दुकान को ढा दीजिए। मैं उस दवाई की दुकान को ढा दिया गया, उसमें हजारों रुपए की दवाइयां भी बर्बाद हो गई। तो आप ये सोचिए कि जो बुलडोजर है वो ऑपरेशन का पूरा एक सिंबल बन चुका है। और ये बताया जा रहा है, शाहीन बाग में एक व्यक्ति ने कहा कि ये बुलडोजर मुस्लिम घरों पे, दुकानों पे नहीं चल रहा है, ये मुस्लिम दिमाग पे चल रहा है। एंड आई सो अग्री विद हिम। एंड आई डोंट नो इस ऑपरेशन के टाइम कहाँ लोगों को इतनी फुर्सत है कि वो इतना आर्टिकुलेशन भी उनके अंदर, मतलब when I heard this, I thought exactly what I wanted. He gave words to my thoughts. He said ये बुलडोजर मुस्लिम दिमाग पर चल रहा है, ये कम्युनल बुलडोजर मुस्लिम दिमाग पे चल रहा है कि ये तुम्हारा देश नहीं है। तुम जो है, तुमने जो तुम्हारे जो भी सोशल पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो तुम्हारा घर, एवरीथिंग इज जस्ट एनक्रोचमेंट. I mean, they will even not wait for Muslims to break any rules or laws. You yourself are illegal. Your existence is illegal. आपके दिमाग में ही बता दिया गया है कि this land no more belongs to you. लेकिन एक थोड़ी राहत ये भी हुई कि जिस बुलडोजर को ऑपरेशन का सिंबल बनाया गया, वही बुलडोजर हमने देखा शाहीन बाग में किस तरह से वहां औरतें लड़ी, वहां इवन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। खासकर मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, वहां उन्होंने कहा कि ये जहांगीरपुरी पार्ट 2 नहीं बनने दिया जाएगा, या खारगोन नहीं बनने दिया जाएगा, या बाकी जहां इलाकों में बुलडोजर चले हैं वो नहीं बनने दिया जाएगा। उन लोगों ने कम से कम रेजिस्ट किया। तो एक जो सिंबल बन रहा था ऑफ ऑपरेशन, उन्होंने उसी मशीन को, उसी ऑप्रेसिव मशीन को एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस भी बना दिया। उसी बुलडोजर पर चढ़ के उसी बुलडोजर को रोका। तो जाहिर है इससे एक अच्छी तस्वीर निकल सकती है, लेकिन कितना कोई रेजिस्ट करेगा? मुझे लगता है कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन, आपने मीडिया के रोल की बात की, मुझे लगा कि मीडिया का रोल तो सिर्फ इतना है कि अभी सिर्फ इतनी मांग बाकी है, ये बोला जा रहा है कि इन बुलडोजर बेरंग लौटे, यानी बुलडोजर बिना कुछ किए जो उनका काम था, ये हेडलाइंस थी कि ये बुलडोजर जो उनका काम था वो उनको नहीं करने दिया गया। तो स्टार एंकर्स जो कि बड़े से बड़ी घटना हो जाए उसमें अपने स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते, वो लोग छोटे छोटे मुस्लिम मोहल्लों में जा रहे हैं। 9 PM बुलेटिन करने वाले लोग जिनको लाखों रुपए सैलरीज मिलती हैं, वो महिलाएं जा रही हैं बुलडोजर पर चढ़कर, वो उस ऑपरेशन के सिंबल पर चढ़कर वहां से पीस टू कैमरा, यानी कैमरे के सामने देखते हुए माइक के साथ अपनी कमेंट्री कर रही है। तो ये रोल है मीडिया का। दिस इज द रोल दैट मीडिया इज प्लेइंग in encouraging the politicians, in telling people that these bulldozers and what they're doing is legitimate. What Muslims are trying to do by resisting that is illegitimate. अब हमारे जैसे 2-4 कुछ ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स बने हैं, हालांकि इससे भी मुझे एतराज है जब लोग कहते हैं कि हम ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं कहती हूँ हम ही मेन स्ट्रीम है, क्योंकि हम ही जो भारत की 80-90% जो आबादी है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, महिलाएं हो, युवा हो, बेरोजगार लोग हो, यही तो देश का बहुसंख्यक वर्ग है। इस सबको जो रिप्रेजेंट करने वाला एक छोटा मीडिया का हिस्सा बचा है वो हम ही है। तो मैं यही मानती हूँ कि हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स ही जो हैं, खासकर डिजिटल मीडिया में जो सीमित होकर रह गए हैं, वही मेन स्ट्रीम है। तो हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारा ये काम है, हमारी खुशकिस्मती है या हमारी बदकिस्मती है कि हमें रोज यहाँ बैठकर मेरे जैसे लोगों को, मैं सोचती थी कभी अच्छी बातें हम करेंगे, कभी दर्शकों को कोई ऐसी चीजें बताएंगे जिसमें स्वास्थ्य की बात होगी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होगी, मैं विमेंस राइट्स की बात करूंगी, मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करूंगी, मैं लड़कियों के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करूंगी। मैं ये सब सोचती थी कि ये सब करने के लिए मैं जर्नलिज्म में आई हूँ, लेकिन पता चला मैं जर्नलिज्म में आई हूँ ये बताने के लिए कि कितनी, कब, कहाँ हिंसा हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग और मारे जा सकते हैं, कितने लोग जख्मी हो रहे हैं। हर रोज वही कहानी, आई रिपीट माई सेल्फ एवरी डे, आई एम टायर्ड, I don't know what to do anymore. And again, maybe I would end on the same note. I feel India resisted as much as it could, and it should. I'm not saying, I mean, I may be a privileged person, I am a public voice, I may have an option to just kind of shut down and withdraw. But do 200 million Muslims of India and many more millions marginalized, other marginalized sections of India, do they have the luxury to just shut down and do nothing? I don't think so. We will have to get up every day, speak for them, speak for us, and resist exactly the way we are doing today. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया
Arfa, and I think you've really sort of brought us face to face with the biggest and the most real challenges that we as a society face. We've seen, we've known, we've engaged with things that you've talked about, but you've woven it all together and you brought it together and really asked us that question, that what choice do we have but to resist? Even in the face of this oppression, even in the face of this hopelessness. I think Arfa ने हिंदी अंग्रेजी दोनों में अपनी बात रखी है. अरफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे कोई ट्रांसलेशन की ऐसी ज़रूरत नहीं है. And yet, I think in some things where, I noticed that there wasn't a full translation, I will still put some of the questions at least that you posed and the main points that you put before us. You've talked to us about the UP elections and the whole journey of also how that has led to the loss of optimism and hope. And you've talked to us about why that has happened, what you saw, what you noticed on the ground, how people voted. And I think that the real question, the elephant in the room that you have addressed and pointed towards is that who do we resist against today? तो आपने जो कहा कि आपके रोंगटे खड़े हुए कुछ चीजों को देख के, तो हमारे भी रोंगटे खड़े हुए आपकी बातें सुन के, क्योंकि हाँ, हम सोच सकते हैं 1857 में the enemy was outside. We were fighting an oppressor. We were fighting a force that we all saw, we saw was somewhere else, and we saw was a clear foreign force was an oppressor. Here, who are we to resist against? And that is a question that each one of us needs to reflect on, because like you said, that are we to resist against, struggle against, and fight against a political force? Or are we to really build a resistance and find a way to struggle against a public and people like us, who this force, this political force has created? This public, these people who are hating their own neighbors. And that can be such a compelling force for them that despite economic, despite social, despite all sorts of tragedies that are breaking on them, they are willing to cast their vote to keep in power these forces, these divisive forces, because they have been convinced in so many ways, cultural, political. You talked about the Kashmir files. You talked about many other files that we are going to see, and which all of us know are going to be unleashed on all of us. They are completely bought into that narrative, that ideology, that Hindu khatre mein hai narrative, the fact that we need to become a Hindu Rashtra, so taken up and in by that. And I think we do need to prepare, and like you said, ourselves, and think about what are the resources that we need. What all do we need to prepare our resistance, our struggle against these forces, which are not and no longer limited to a political party or a political organization, but we see all around us, and which are going to have an impact on generations to come. So, because even if the political party which espouses this kind of divisive politics is defeated, the seeds of hatred, the kind of hate and violence that is being propagated is going to take decades if it ever goes away. And you talked about state oppression of a community, of the Muslim community. You talked about the symbol of
bulldozers, how the bulldozer today, we know we switch on any TV channel, and it is so shameful to see, you know, all of these people, you know, sitting up on bulldozers, goading the police on, goading the authorities on to say कि अरे आपने इनकी केवल छत तोड़ी और आपने walls छोड़ दी. These are the kind of questions that journalists are asking. And that is where I think that the role of the media, and which is what I really sort of also thought that it was important to request you to focus on, and thank you for doing that, that we need to really think of what is the kind of media that we all at least need to support. So yes, while you say that, you know, there are some honorable exceptions, there are certain media houses, channels, you know, online media, which still stands firm, still stands for constitutional democratic values and continues to show the truth and shows truth to power. We all need to think of how we are to actually to rally around them, to support them, and to actually think of how we want to also, what are the kinds of resources that we need to build the resistance that we need to build. And Arfa, I think it is people like you who give millions hope. And we thank you for sharing your thoughts with us, and also sharing your thoughts with us so candidly. But we hope and we pray that you never lose hope, because unless there is resistance, unless there are people who resist, who stand up, and like you said, that the same bulldozer, which was the symbol of resistance, became was a symbol of repression, became a symbol of resistance. Unless there are people like you, unless there are voices that remain optimistic even in the face of this kind of venom that we see around us, we can't ever hope to build the India that we want to see, and which really in 1857, in many ways, so many lakhs of people came together to build and even gave their lives to build. So thank you very much, Arfa. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मेरे ख्याल से जो आरफा ने बातें करी, उनसे हम बहुत easily we can move to our next speaker. मैं request करूंगी प्रोफेसर अपूर्वानंद जी को कि वो अपना वीडियो प्लीज ऑन करें, अपनी बात रखें. हम सब प्रोफेसर अपूर्वानंद जी को जानते हैं, मीडिया में भी देखते हैं, पर वो लिखते हैं, सोचते हैं, पढ़ाते हैं. बहुत बड़ा खतरा है ऐसे फोर्सेस को जो कि डिवाइसिव और कम्युनल एजेंडा चलाते हैं. बहुत सारे केसेस भी हैं उनके खिलाफ. तो अपूर्वानंद जी, the floor is yours for the next 10 to 12 minutes. We request you to talk to us. आप अपनी बात रखें. प्रतिरोध की जो हम बातचीत कर रहे हैं, कीपिंग रेजिस्टेंस अलाइव की जो हम बातचीत कर रहे हैं, आज जिस तरह से प्रहार हो रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी पे प्रहार हो रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी पे प्रहार हो रहा है, जो बोलते हैं, जो आवाज उठाते हैं, जो रेजिस्ट करते हैं, उन पर प्रहार हो रहा है. ऐसे में हाउ डू वी कीप रेजिस्टेंस अलाइव? सो द फ्लोर इज योर्स. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. बहुत शुक्रिया अंजलि. माफ कीजिए, मैं कुछ देर से मैं शामिल हो पाया, लेकिन मैंने आरफा जी को पूरा सुना और जिस चुनौती का वे सामना कर रही हैं, जिसके बारे में उन्होंने बहुत ईमानदारी से बात की, बिना किसी वीरता का प्रदर्शन किए हुए, क्योंकि ऐसे वक्त आते हैं जब हमें यह कबूल करना चाहिए कि हम नहीं समझ पा रहे कि हम इन हालात का सामना कैसे करेंगे, और हमारे पास पूरे साधन नहीं है.
हमारे पास पूरे बौद्धिक संसाधन नहीं है, हमारे पास राजनीतिक संसाधन नहीं है, हमारे पास सांस्कृतिक संसाधन नहीं है। हमें इस बात को ईमानदारी से कबूल करना चाहिए। ऐसा वक्त आता है जब हमें बहुत खुलकर कहना चाहिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम हार रहे हैं, और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे शायद हम जीत ना पाए। बिना किसी अतिरिक्त वीरता का प्रदर्शन किए हुए, बिना नारेबाजी के, इस बात को स्वीकार करना अपनी स्थिति को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और आज जिस संदर्भ में आरफा यह बात कह रही थी, और उसके पहले मैंने जो बतलाया गया, उसके पहले के वक्तव्य का सार संक्षेप वह भी मैंने सुना। वह संदर्भ 1857 का, जिसे पहला स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है, उस स्वाधीनता संग्राम की रोशनी में प्रतिरोध के मूल्य को याद करने का है। प्रतिरोध के मूल्य को हम कैसे याद करें और वह प्रतिरोध क्यों किया गया था, इसको भी समझने का प्रयास करें। उस संदर्भ में आरफा अपनी निराशा व्यक्त कर रही थी। आज के हालात में, आज के हालात का सामना हम कैसे कर पाएंगे, हम उन हालात को बदल कैसे कर पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, इस पर चर्चा करते हुए वे निराशा व्यक्त कर रही थी। और मेरी समझ है कि इस निराशा की बहुत कीमत है। इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यह हम सबकी साझा निराशा है, एक तरह की साझा निरुपायता है, और उसको स्वीकार करने में किसी तरह की शर्म, किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम आज एक ऐतिहासिक प्रसंग को याद कर रहे हैं। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं 1857 का अध्येता भी नहीं, मैं 1857 का में सामान्य दिलचस्पी रखने वाला एक व्यक्ति हूँ। और अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें, मृदुला जी यहाँ हैं और ये पूरी दुनिया एक तरह से इतिहासकारों की बनाई हुई दुनिया है, अगर आप मुझसे बहुत ईमानदारी से पूछें तो मैं इतिहास में जाकर आज के लिए औचित्य खोजने की कोशिश नहीं करता। यह एक स्तर पर यह बात व्यर्थ है, और ये इसलिए व्यर्थ है, मुझे हमेशा प्रेमचंद की बात याद आती है कि इतिहास की व्याख्या वास्तव में आप अपने मूल्यों के आधार पर करते हैं, अपने जीवन मूल्यों के आधार पर। अगर आपका जीवन मूल्य, अगर आपकी जिंदगी के उसूल साझा जिंदगी के उसूल हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो श्रेष्ठतावाद से पूरी तरह से मुक्त है, जो ये नहीं कहता कि जब वो ये कहता है सारे जहां में से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वह कुछ ऐसे ही होता है जैसे मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। लेकिन हमें यानी ये मालूम है, एक प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका, एक प्रेमिका के लिए उसका प्रेमी, एक प्रेमी के लिए उसका प्रेमी, वह दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति होता है। ये जानते हुए कि हम दरअसल अपने मन की छवि देख रहे हैं, हम उसमें कोई श्रेष्ठतावाद से ग्रस्त नहीं है, हम दूसरे को हीन करके बताना नहीं चाहते हैं। अगर ये हमारे उसूल हैं, तब हम 1857 से कुछ और अपने लिए हासिल करेंगे। और अगर हमारे उसूल ये नहीं है तो ये कतई मुमकिन है कि हम 1857 से भी अपनी नफरत के लिए कोई सामान उठा कर ले आए। ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि इतिहास आखिरकार हमारी कल्पनाओं को भी शक्ल देता है। हम किस तरह की कल्पना करना चाहते हैं, और वो कल्पनाएं हमारे, जैसा मैंने कहा, वो हमारे जीवन मूल्यों पर आधारित है। हम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, कौन सी जिंदगी हमें अच्छी लगती है। और आज जब हम इतिहास पे बहस करने लगते हैं और हम इतिहास के तथ्यों को बताने लगते हैं, और ये सबसे पहले मुझे समझ में आया था जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू किया गया था और बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि के रूप में प्रचारित किया जाने लगा था। तो हम सब लोगों ने ये कोशिश की कि हम बताने का प्रयास करें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर, कि यह दरअसल बाबरी मस्जिद ही थी, इसलिए इसको नहीं टूटना चाहिए।
जबकि हमारी बहस कुछ और होनी चाहिए थी, हमारा तर्क कुछ और होना चाहिए था। लेकिन हम प्रमाण इकट्ठा करने लगे और ये परमाणु का युद्ध हो गया। और हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब हम परमाणु का युद्ध करते हैं तो जिसके पास ताकत आती है उसका प्रमाण ही प्रामाणिक होता है। और इसलिए जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने अपनी पाठ्य पुस्तक में महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में जिता दिया। तो आप वहां बिल्कुल निरुपाय थे, आप ये कहते रहे कि गलत है, लेकिन कई कक्षाएं वह पढ़ के निकली कि महाराणा प्रताप ने वह युद्ध जीता था। तो प्रश्न सिर्फ यह है, जैसे 400 वर्ष मनाए जा रहे हैं गुरु तेग बहादुर की शहादत, और आपने कुछ दिन पहले देखा इस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से बाकायदा वह आयोजन किया। शीशगंज गुरुद्वारा सामने है, वहां से हो सकता था, दूसरी जगह से हो सकता था, लाल किले से किया। और वह एक संदेश देने के लिए, और वह संदेश फतह का था, वह संदेश हिंसा का था। और उसके पहले भी जब बनारस से संदेश दिया गया तो वहां भी बार बार औरंगजेब और शिवाजी, और उसके पहले भी गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर का नाम जब लिया गया तो वह मुगलों और प्रकारांतर से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए किया गया। मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम इतिहास में जाकर अपने आज के संघर्ष का हल नहीं खोज सकते। हम में से कई लोग बहुत बदहवासी में, बहुत बेचैनी में इतिहास की ओर जाते हैं और वहां से हम कुछ हासिल करना चाहते हैं जो जिंदगी वहां से हमें मिले, और वो बिल्कुल ठीक है। और 1857 के संघर्ष में वह है, आजादी के संघर्ष में वह है। लेकिन अब हमें यह पूछने की आवश्यकता है कि कम से अगर हम पिछले 70 सालों की जिंदगी को देखें, हम अपनी जिंदगियों को देखें, हमने अपनी जिंदगी में इस साझा जीवन के उसूल को साबित करने के लिए कौन से साधन पैदा किए। अगर आज से 100 साल बाद कोई इस 70 साल को देखे तो जैसे हम 1857 की बात कर रहे हैं, वह क्या कर पाएगा? क्या ये पूरी कहानी निराशा और हताशा की कहानी होगी? मेरी समझ है ऐसा नहीं है, वो पूरी कहानी वैसी नहीं होगी। लेकिन अब हमें ज्यादा वक्त इन समाज में इन सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों के संघर्ष में देना होगा। और उसमें साहित्य की अपनी उपयोगिता है, उसमें इतिहास की अपनी उपयोगिता है। वह 1857 का इतिहास हो, या जब हम अकबर की बात करते हैं, या जब हम औरंगजेब की बात करते हैं, अशोक की बात करते हैं, और तो यह भी बहुत साफ हमारे सामने होना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि वास्तव में हम उन तरीकों से अपने आधुनिक जीवन को समझ भी नहीं सकते। हम एक जनतांत्रिक दुनिया की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जिसमें किसी के कोई बादशाह संयोग से अच्छा हो जाए। अकबर अच्छा हुआ, महान हुआ, दारा शिकोह हुआ, लेकिन अकबर के तरीके हमारे तरीके नहीं हो सकते, अशोक के तरीके भी हमारे तरीके नहीं हो सकते। फिर एक जनतांत्रिक संबंधों की दुनिया में, जो नवाबों की दुनिया नहीं है, जो राजाओं की दुनिया नहीं है, जो रानियों की दुनिया नहीं है, जो हम आप जैसे साधारण लोगों की दुनिया है, उस दुनिया में हमारे रिश्ते कैसे बनेंगे? और उस दुनिया में प्रतिरोध का मतलब क्या होगा? उस दुनिया में दरअसल नाइंसाफी हम कहाँ देखते हैं, किन चीजों में देखते हैं? क्योंकि मुझे प्रायः यह लगता है, और मैं 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, और भी हमारे मित्र हैं, कि हम जब एक साझेदारी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जब हमने उतना बड़ा जुल्म झेल लिया, जब हमने उतने बड़े जुल्मी का सामना किया, तो ये क्या चीज है? तो हमें समझना चाहिए कि दोनों में गुणात्मक अंतर है, दोनों बुनियादी तौर पर अलग हैं। और अभी जो प्रयास किया जा रहा है वो इतना शैतानी प्रयास है जिसमें जनता को 2 हिस्सों में बांट देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जनता के ये 2 हिस्से एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हो जाएंगे।
और जनता को लगातार उत्तेजना में रखने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी तरह की साझेदारी की संभावना से इनकार किया जा रहा है। एक चिरंतन भय की अवस्था बनाकर रखी जा रही है, जिसमें मैं आपको हमेशा शक की निगाह से देखता रहूंगा। चारों तरफ आशंका का वातावरण है। हम में से कोई भी खुलकर बात नहीं कर सकता। आपने कल लखनऊ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रविकांत के साथ हुआ बर्ताव देखा होगा। उसके पहले आपने बड़ौदा विश्वविद्यालय में जो कला संकाय के छात्र हैं उन पर हुआ हमला आपको याद होगा। उस पर एक छात्र पर FIR हो गई है, हमें उसका नाम मालूम नहीं है। उसके पहले आपको यह पता होगा कि शारदा यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उसने कक्षा में प्रश्न किए। तो वे सारी जगहें जहां हम सोचना सीखते हैं, क्योंकि हम अपने आप नहीं सोचते, हमको सोचना सीखना पड़ता है, और ये वो जगहें हैं जो हमें सोचना सिखाती हैं, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल। अगर उन सारी जगहों को आशंकाओं से भरी जगह बना दिया जाएगा तो फिर समाज सोचना सीख नहीं पाएगा। क्योंकि दूसरा जो विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय से बाहर, वह अखबार थे, जहां बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लोगों को सूचना का मतलब बतलाया जाता था। एक संपादक, एक संवाददाता, एक उप संपादक, एक डेस्क, वह सूचना की परीक्षा करना, फिर उस सूचना का विश्लेषण करना, उस सूचना को कैसे दिया जाए, कितनी सावधानी से, कितनी संवेदनशीलता से। अब अगर वह सारा बोध समाप्त हो जाए और हम एक ऐसे समाज में बदल जाए जिससे 2-3 चीजों का बोध समाप्त हो जाए। एक, न्याय का बोध। मसलन अगर रोजाना बुलडोजर चलने लगे तो समाज भूल जाएगा कि न्याय दरअसल क्या होता है। समाज को लगेगा न्याय यही होता है जिसमें अपराधी को गोली मार दी जाती है, अपराधी की गाड़ी पलट दी जाती है, बुलडोजर चला दिया जाता है, तो न्याय का पूरा बोध ही समाप्त हो जाएगा। उसी तरह बराबरी का बोध समाप्त हो जाना, उसी तरह हमदर्दी का बोध समाप्त हो जाना, साझा जिंदगी का बोध समाप्त हो जाना, ये ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिनसे समाज फिर उबरने में समाज को बहुत वक्त लगता है। तो हम 1857 के पास अगर जाते हैं, अगर हम आजादी के आंदोलन में जाते हैं, तो हमें इस बोध को जीवित रखने के लिए, इस सेंस को जिंदा रखने के लिए हमें वहां से साधन लाने पड़ेंगे कि यह सेंस जिंदा रखा जाए। और वरना अगर हमारे पास ये चीज चली गई तो फिर एक लगातार होने वाली हिंसा से हमको कोई बचा नहीं सकता। यह हमारा कर्तव्य है, बावजूद सारी निराशा के, और बिना इस निराशा को स्वीकार किए हुए हम इस कर्तव्य की ओर आगे भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम कई बार झूठी बहादुरी में पड़ जाते हैं, हम झूठे नारे लगाने लगते हैं। तो हम कम से कम अभी तो उन झूठे नारों से खुद को मुक्त कर लें, झूठी बहादुरी से खुद को मुक्त कर लें, और ये समझें कि हम कितने निरस्त्र हैं, कितने निष्कवच हैं, और अब हमें अपना संघर्ष कैसे करना है। लेकिन वो संघर्ष तभी हो सकता है जब हम एकजुटता के सिद्धांत को, जो कि 1857 का सबसे बड़ा सिद्धांत है, उस एकजुटता के सिद्धांत को, जो हमारे संविधान का एक शब्द है जिसे आप जेंडर्ड कह सकते हैं, फ्रेटर्निटी, उसे आप सॉलिडारिटी कह लीजिए, बंधुत्व कह लीजिए, उस बंधुत्व के बिना न तो न्याय हासिल किया जा सकता है, न बराबरी हासिल की जा सकती है, न स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बंधुत्व को वापस बहाल करने की है और सोचने की ताकत समाज को वापस देने की है। और इसमें हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारे पास इसका विकल्प ही नहीं है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अनहद का, सारे मित्रों का, कि हम ऐसे अवसरों की खोज कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हर कोई ऐसे अवसर को दूषित करने का प्रयास करता है। जैसे जो पवित्र अवसर है, गुरु तेग बहादुर की शहादत, वो शहादत वाकई है, लेकिन वो शहादत एक जुल्म के खिलाफ है, जिसमें कोई एक केंद्रीय सत्ता, कोई एक व्यक्ति अपना एक फरमान आरोपित करने का प्रयास करता है, और वो सबके लिए। तो हम जब तक उस
पवित्रता को वापस नहीं हासिल करेंगे, समाज को वह भाषा फिर से प्रदान नहीं करेंगे जिसमें यह संवाद संभव हो सके और ये संघर्ष संभव हो सके, और ये सारे अवसर ऐसी भाषा को, ऐसी जुबान को फिर से हासिल करने के अवसर हैं। हम इनको जाने नहीं दे सकते, और इसलिए इन 1857 को याद करना सिर्फ उस बहाने कुछ नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि कैसे उस मुश्किल में इस सिद्धांत को जिंदा रखा गया, तो फिर हम क्यों आज जिंदा नहीं रख सकते। एक बार फिर आप सारे लोगों का, सारे मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अंजलि। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी। और I think Apoorvanand ji spoke in Hindi. I'm going to very briefly translate what he said into English, because we do have many people here from the South also. You very sort of, you made us reflect about several things, Apoorvanand ji. You talked to us about how there are times when we really need to admit that things are in fact, there is an atmosphere of despondence, there is despair, and that we don't have the adequate resources. We might not be able to put up a struggle which can actually result in a victory that we need at this time. And you also talked about how, while we draw from history, we also have to be careful that contexts change and historical contexts change too. And you quoted Premchand to say that we also understand and describe history very much on the basis of our own values. So what I think Professor Mukherjee said, what Mridula said, that history is embattled. I think in that sense, you really said that anyone who's looking at what happened in history, in our society, also looks at it very much from their own lens, from their own set of values, and develops an understanding of it. You referred to the Ram Janmabhoomi Babri Masjid incident to substantiate your point. But you also talked about the distortion of history we are seeing at the highest levels today, how divisive forces are interpreting what happened and using various occasions, which we all might think of as occasions where we need to think about justice, we need to think about solidarity, but actually using those occasions to stoke the seeds and the flames of violence and mistrust. You did say that the temptation to turn to history is very real, might not always be useful, but of course we do need to engage with it. You talked about how in our society we see injustice and the need to really reflect on that. The attempt to divide, the attempt to create fear, suspicion amongst people is so real today. How people don't dare to speak out. There is a very deliberate attempt to cause a chilling effect. You talked about attacks on people, attacks on, on spaces, where people come together to learn, to think. One such space, of course, is the university, the educational institutions, whether they're schools or colleges or universities, where we are seeing such a huge attack, because that is really where we learn how to think, where we learn how to question, where we develop our understanding of things. You talked about yesterday's incident of the attack on the professor in the Lucknow University. You talked about how students who are questioning are being so systematically attacked, and that we are seeing happen across. In fact, I think that one of the most
telling things is that perhaps in no other country in the world, using COVID as an example, have universities been and educational institutions been shut for so long and education been disrupted in such a systematic way as it has been in our country. The other place that you talked about where we learn to think, where we build our knowledge, our understanding, has been traditionally newspapers and the media, and how our understanding, they were sources of information, of knowledge, and building understanding, and how those have been compromised because our understanding of equality, of justice, all of it is being distorted in a very systematic way. So what Arfa talked about, the bulldozer politics, the bulldozer Raj, every single day, the media, the newspapers carrying those articles and that, journalism of the kind that she talked to us about, that actually distorts people's understanding of justice, where it gives license over a period of time to this culture of instant justice, this culture of disregard for the rule of law. And you talked about how we need to understand somewhere and acknowledge perhaps the fact, and that's important for our resistance and for the struggle to grow, that these divisive forces, these distortionary forces sit with huge resources. And it is true that many of the alternate, the progressive, those who are working to create a certain kind and build a certain kind of narrative in India don't have those resources. We need to acknowledge it as we build resistance and struggle. And finally, I think you talked about how without solidarity, without harmony, we can't think of freedom, justice, and rights. And so the importance of the struggle to reclaim solidarity, the struggle to reclaim harmony, and reclaim that language, those spaces, and each of those opportunities where we can talk about harmony, we can talk about solidarity, because without that, there is no resistance, there is no meaningful struggle. So thank you so very much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी. आपने इतनी हमें मजबूर किया है सोचने पर भी कि क्या क्या जब हम resistance की बात करते हैं, when we think about keeping resistance alive, what all we need to think about, and finally those values, that without those values it's all meaningless and we can't really hope to achieve what we want to. So thank you very much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Or I'm going to now move to our next speaker. We have with us Prashant Bhushan. Prashant Bhushan ji ko hum sab jante hain. We know Prashant. He doesn't need an introduction. Prashant is someone who embodies resistance. He does not hesitate at any cost to call out injustice, to speak for the voiceless, to take up battles for justice, for solidarity, for harmony on the streets, in the courts. And when we speak about resistance, we are talking about keeping resistance alive. I know, Prashant, that you joined us late because you were on a discussion where you were also talking about similar issues, but we've had a very, very rich discussion so far about the need for resistance today. We've talked about this, this huge fall of this entire environment of hate that is gripping the country, this entire environment which is being created very deliberately by divisive forces, and against which resistance and struggle is the only way forward. But we are talking about, of course, in the context of the, we are marking the anniversary of the 1857 revolt, but we are saying that there is
really no, we've heard our speakers say that there is really no alternative to resistance, and how we need to think about it, how we need to plan it, how we need to, in every way, to resist the injustice and this arbitrary discrimination that we are seeing. So we also discussed, Prashant, the need for institutions to stand by people. And we hope that you will also talk to us about the judiciary, about the challenges that we are seeing when we are talking about keeping resistance alive, what you see as the role of the judiciary, the challenges that you think that there are in the judiciary today, and of course, some rays of hope. So today we saw the order from the Supreme Court on sedition. So we hope to hear all of these things from you, your thoughts on these. The next 12 minutes are yours. Thank you, Prashant. Thank you, Anjali. I think I'll speak in English because you said that some of our people don't understand Hindi. So it might be better if I speak in English. I know it's quite late, so I'll be very brief. The 1857 movement was against a foreign government at a time when we didn't have a constitution. Therefore, in that sense, it was a more difficult struggle. But today what we are faced with, though we do have a constitution, we have been given fundamental rights under the constitution made institutions for democracy, made various other institutions of accountability, etc. But today what we are seeing is a concerted assault by the present government, an unprecedented assault, not merely on our fundamental rights, not merely on all our institutions, but also on civilized values, on civilization itself, as well as on critical thinking. Therefore, in many ways, we are faced with a far more formidable challenge today than we were faced with in 1857 when we were beginning our struggle against a foreign ruler. When I say that there is a concerted assault on all our, of course, Professor Apoorvanand and many others who came before him spoke about the assault on fundamental rights, the assault on the freedom of speech. But if you see the kind of assault that has taken place on all the institutions that were created by the Constitution, today we have a situation where, of course, the police has become a total instrument in the hands of the political executive. And this is despite the fact that the Supreme Court 15 years ago gave a very important judgment on police reforms which have not been implemented. And we see that the police, by and large, in almost all states, is acting as a complete instrumentality of the political executive without regard to the rule of law. And what has been happening on the way in which the law of sedition has been applied by the police is a clear example of that. Because as far back as in 1962, when this colonial law was challenged, the Supreme Court said that the only way to save it from being declared unconstitutional is to read it down and say that sedition can only be an offense if there is incitement to violence or incitement to public disorder. But despite that declaration or reading down by the Supreme Court, we have been seeing over the last 60 years since that judgment that this law has been grossly abused, and abused at the instance of the political masters of the police to harass and put in jail people who have been criticizing those governments. Today, fortunately, the Supreme Court has kind of stayed this implementation while they were hearing a challenge
to this law. When the government said that, all right, we are reconsidering and Parliament will reconsider this law. So the court said, all right, you can reconsider, but till that time, they have virtually stayed the implementation of this law, and have also directed that no pending proceedings, whether they are at the stage of investigation or at the stage of trial, on this charge of sedition will be continued. And therefore, it means that people who are in jail charged with sedition will be entitled to apply for bail. This is certainly a great silver lining in judicial activism in the very bleak landscape that we have been seeing over the past many years of the collapse, of the virtual collapse of the judiciary in the face of an aggressive fascist executive represented by the present central government. We have been seeing that the independence of the judiciary had virtually collapsed, barring a couple of stray things that have happened in the last 1 year or in the last few months. Other than that, we have seen that in virtually every important case, whether you take the Rafael case, or you take the Babri Masjid case, or you take the Kashmir cases, or you take the CAA cases, or you take the electoral bonds case, that either the court has not even bothered to hear them, or the court has just gone the way the government wanted it to go, without really asserting its independence. So this is certainly a great silver lining that we see, and I'll talk about it a little more, that when we see the collapse of institutions in this country, and this is across the board, I said that there is a collapse of the police, there is a collapse of the election commission, which has been behaving in a totally partisan manner. And this has happened for the first time after many years, in the last few years during the Modi government, that the independence of the election commission has come to be questioned. Same thing about the Comptroller and Auditor General, same thing about the Human Rights Commissions, etc. Same thing about the information commissions. So all these institutions which were set up to protect democracy, to protect fundamental rights, etc., have been seen to be collapsing. And when I say that there is an assault on civilized values or civilization itself, I mean, even during the British Raj, we never saw this kind of abuse and rape threats, etc., and threats of death threats and threats of violence being issued not merely on the streets, but even on the social media by the BJP's IT cell, which is, as Swati Chaturvedi wrote in her book, I Am Patrol, which is controlled by none other than the Prime Minister himself. We have never seen this kind of collapse of just pure civility. Even in the British Raj, though there were no protection of fundamental rights or constitution available during that time, but even there, at least the judiciary and whatever institutions were there, behaved more responsibly towards whatever law existed. But today what we are seeing is that these institutions have stopped bothering about the laws which they are supposed to administer or govern by. So therefore, our duty as resistors, but despite this assault on institutions, assault on civilization, and assault on critical thinking, the assault comes in two ways. One is by promotion of all kinds of mumbo jumbo and religious nonsense in the name of science, where the Prime Minister can go and say that that Lord Ganesh's trunk was a great piece of plastic surgery in ancient India, or when he can say that Kern was a baby of in vitro fertilization in ancient India, or all kinds of nonsense is being propagated
or the virtues of Gaumutra or Gobar, etc., to protect us against nuclear attacks and so on. So there is an attack on scientific temper. There is an attack on critical thinking by way of attacking the universities themselves, which are supposed to be the citizens of critical thinking. So in such a situation, the importance of resistance by conscientious people. So the first act of resistance is to speak out against all the injustice and all the wrongs and all the evils that we see around us. And fortunately, despite the attempt of this government to intimidate activists, etc., that spirit of resistance and that flame of resistance in this country has still been kept burning by a very large number of activists, journalists, lawyers, and others in this country. And when we see collapse of institutions all around us, it is our duty to critique all these, to constantly critique all these institutions, even the judiciary, that when it does something which it is not expected to do, when it fails to perform its duty as the guardian of fundamental rights of people, then it is not merely the right, it is the responsibility of right-minded citizens to criticize the judiciary, to critique it. And I have found in my experience that that often helps. When you praise the judiciary, when they do the right thing, and criticize the judiciary when they do the wrong thing, if sufficient number of people start doing that without bothering about the danger of being hauled up for contempt of court, etc., then we find that the court often does respond to that criticism or that praise. Praise when it is due. For example, today, I have praised the Supreme Court for their virtually staying the law of sedition. But when they do something wrong, they need to be critiqued and criticized. There are many problems with the judiciary. There is a problem of lack of access. There is a problem of delays. There is a problem of incompetent judges. There is a huge problem in the method of appointment of judges. There is a problem of corruption. And there is no proper system of accountability of judges. But the most recent problem that we have encountered is the problem of lack of independence of the judiciary, where we are finding that, firstly, there are judges who are affiliated to the BJP or the RSS who are coming to be appointed, that the government does not even allow the appointment of independent judges by just stalling their appointments, etc. That sometimes we have seen in the recent past how chief justices who had collapsed in their independence, I am omitting the present incumbent, but prior to that, we have been seeing a succession of chief justices whose independence had completely collapsed. And because the chief justice is supposed to be the master of roster and he can decide which case will be heard by which bench, etc., if the chief justice collapses, then he can virtually ensure that the entire judiciary collapses. And this is one other problem that we have encountered, this whole problem of the chief justice having this inordinate power of master of roster. So it's exceedingly important for all citizens, all right-minded citizens, to keep our eyes and ears open about what these various constitutional as well as statutory important institutions like the Election Commission, CAG, Information Commission, Human Rights Commissions, Judiciary, etc. are doing. Constantly critique them, constantly campaign for reforming them as to whatever reforms are required in them, and try and do it in an organized manner so that it has a political impact. But one other duty of all conscientious
citizens is also to try and have a political electoral impact by their actions. Now, it is not true that only those parties, political parties who are directly involved in electoral politics can play a significant role in determining the outcome of elections. The citizenry also has an important role to play. And if the citizenry were to get organized and were to get active, even if it were not directly involved in electoral politics, the citizenry can still do a lot to change the outcome of electoral politics, because unless we are also able to influence electoral politics, our resistance will not mean very much or will not take us very far. Therefore, our resistance also has to be focused on how we can impact electoral politics. So one of the ways of doing that is to organize ourselves and run citizens' campaigns on important public issues, which can have a political electoral impact in the elections whenever they are held, even if we are not directly participating in them. So I'll just, these are a few thoughts that I had about resistance and institutions, and particularly the judiciary. I'll stop here. Thank you very much. Thank you very much, Prashant. And it's always sort of good to hear a strong, optimistic voice also to kind of start rounding off a discussion. So we heard the kind of environment that we are in today. मैं थोड़े से अनुवाद करूंगी, प्रशांत ने जो कही बातें अंग्रेजी में ज्यादातर कही, इसलिए मैं हिंदी में अनुवाद करूंगी। इससे पहले हमने बहुत सारी बातें करी, रिफ्लेक्ट भी करा, ये भी समझा कि किस तरीके के माहौल में आज हम लोग रह रहे हैं, किस तरीके के फोर्सेस हैं जो प्ले में हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे सोसाइटी पर, हम किस तरीके से रेजिस्टेंस बिल्ड करने में चैलेंजेस हमने सुने। और प्रशांत ने हमारे साथ जो बातें करी हैं वो है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस को हम बिल्ड करें। और उसमें आज प्रशांत ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि 1857 में सही है कि एक फॉरेन सरकार थी, उसके अपने चैलेंजेस थे, उसको रेजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रगल थी उसको बिल्ड करने के लिए एक तरह के चैलेंज थे। आज हम एक संवैधानिक दायरे में काम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, जो हमारा संविधान है उसके तहत इंस्टीट्यूशन सेटअप हैं, ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जिनका काम है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो पावर में है, जो लोग आज सत्ता में हैं, उनके ऊपर निगरानी रखना, अगर वो कुछ गलत करते हैं, अगर वो अन्याय करते हैं, गलत पॉलिसीज बनाते हैं, एक्शंस गलत करते हैं, तो उनके ऊपर अंकुश लगाना। लेकिन उन्होंने कहा कि आज उन्हीं सब संस्थाओं के ऊपर एक बहुत गंभीर असॉल्ट है, एक बुरी तरह से उन्हीं संस्थाओं को कुचलने का एक काम चल रहा है। वो संस्थाएं जिनका काम है कि लोगों को, जिस इंडिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट करते हैं, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, स्वतंत्र भारत में, लोकतंत्र में जो लोगों के अधिकार हैं, जो हमें एक लोकतांत्रिक जो देश बनाते हैं, का नागरिक बनाते हैं, उन सब अधिकारों का जब हनन हो रहा है तो ऐसे में अपेक्षा ये रहती है कि ये जो संस्थाएं हैं जो बनाई गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो लोगों के इन वैल्यूज को, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकें,
उन संस्थाओं को किस तरीके से पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, अंडरमाइन किया जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता घटाई जा रही है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। प्रशांत ने ये बात रखी। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, संस्थाओं की बात करें, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नजर आता है वो तो है पुलिस। इससे पहले हमने बात करी थी बुलडोजर्स की और बुलडोजर राज और बुलडोजर पॉलिटिक्स की कि क्या चल रहा है, लेकिन ये कर कौन रहा है? ये पुलिस के जरिए से, जो पुलिस का इंस्टीट्यूशन है, वो हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पर लोगों के लिए ना खड़ा होकर, देश में जो नागरिक हैं उनके लिए ना खड़ा होकर, जो पॉलिटिकल, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए काम कर रही हैं। और इसके अंदर वो अनेक तरह के पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर चला रहे हैं एक कंप्लीटली आर्बिट्ररी अनलॉफुल तरीके से, और चाहे सेडिशन का, देशद्रोह का कानून लगा रहे हैं लोगों के ऊपर उनकी आवाजें को चलने के लिए। और प्रशांत ने कहा कि ये जो देशद्रोह का कानून है वो इसके बावजूद के 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीड डाउन करा। कोर्ट ने कहा कि देशद्रोह का कोई मतलब नहीं होता जब तक कि इस कानून का कोई एप्लीकेशन नहीं होता, जब तक कि क्लियरली इस कोई ऐसी बात कही जाए जिससे वायलेंस हो, जिससे कि जो हिंसा है वो रिजल्ट करे। उसके बावजूद, ये जानने के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, हम देख रहे हैं कि देश भर की पुलिस, अलग अलग राज्यों में पुलिस इस कानून का सहारा लेकर, सेडिशन का सहारा लेकर लोगों को चुप कराने के लिए, ऐसी आवाजों को जो अन्याय के खिलाफ बोल रही हैं उनको चुप कराने के लिए उनके खिलाफ केसेस लगा रही है पुलिस, और लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। बेल का कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आज उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके अंदर कोर्ट ने बहुत एक बढ़िया ऑर्डर दिया, जिससे कि उन्होंने स्टे कर दिया इस पूरे कानून के इम्प्लीमेंटेशन को। तो इसके कारण जो तमाम लोग जेलों में भरे हुए हैं सेडिशन लॉ के तहत, वो अब बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने बेसिकली ये कह दिया है कि जितनी भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स भी हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लोग जेल में हैं, वो भी उसके ऊपर भी जो लोग हैं वो जो स्टे लगा दिया है और कहा है कि जो लोग अंदर हैं वो फिर एंटाइटल्ड हो जाते हैं बेल के लिए। तो प्रशांत ने कहा कि जब इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, वो अपना काम करती हैं सही से, तो जो लोग रेजिस्ट करते हैं, एक लोकतंत्र में आवाज उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके हाथ मजबूत होते हैं। और उन्होंने कहा कि जुडिशरी के रोल के ऊपर प्रशांत ने कहा कि आज का ऑर्डर तो बहुत ही एक अच्छा ऑर्डर है और हमें उम्मीद देता है ये ऑर्डर, लेकिन जुडिशरी का जो रवैया रहा है उसके ऊपर गंभीर चिंता व्यक्त की प्रशांत ने। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के से केसेस हैं, चाहे वो करप्शन के, भ्रष्टाचार के केसेस हो हाईएस्ट लेवल पे, उन्होंने रफाल के मुद्दे की बात करी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मामला हो कश्मीर के मुद्दे पर, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मामला हो जहां पर कि पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी कानून लाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है उसको, अयोध्या की जो जजमेंट है, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला हो। हम जानते हैं कि किस तरह से मनी पावर, जो पैसा है, कितना बड़ा एक साधन है सत्ता को पाने का। इन सब इश्यूज के ऊपर जुडिशरी या तो चुप्पी साधे है, और या फिर जिस तरीके के उन्होंने जजमेंट्स दिए हैं वो पूरी तरह से सत्ताधारियों की तरफ गए हैं। तो ये जो जुडिशरी का रोल है, प्रशांत ने हमें कहा कि बहुत ही जरूरी है, और तमाम इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी और पुलिस ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है या सीएजी है या जो मानव अधिकारों के जो संस्थान हैं, जो ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं, सूचना आयोग है, इन सब का काम है कि हमारे साथ खड़े रहें, नागरिकों के साथ खड़े रहें जब वो सरकार के जो पॉलिसीज हैं, एक्शंस हैं जो कि गैर कानूनी है, गलत हैं, गैर संवैधानिक हैं और
लोगों के खिलाफ हैं, जब उनके खिलाफ लोग आवाज उठाएं, रेजिस्टेंस करें, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस का काम है कि वो लोगों के साथ खड़े रहें। इसलिए उन्होंने कहा कि जो आज हम माहौल देख रहे हैं, जिसके बारे में अरफा ने बात की, अपूर्वानंद ने बात करी, तमाम लोगों ने बात करी, मृदुला जी ने भी बात करी थी, कि जिस तरीके का हम अटैक देख रहे हैं वो केवल किसी एक कम्युनिटी पर ही अटैक नहीं है, वो किसी एक केवल हम ये नहीं कह सकते कि वो केवल कम्युनल ही मामला है, ये तो पूरे सभ्यता पर अटैक है। जो हम सारी जो मूल्य है हमारे, जो एक सभ्य समाज के मूल्य होने चाहिए हैं, सिविलाइज्ड डिस्कोर्स के ऊपर ही आज अटैक हो रहा है। जिस तरीके की हम अब्यूज देख रहे हैं, रेप थ्रेट्स आते हैं, जिस तरीके का वायलेंस हम देख रहे हैं, वो तो आज 1857 में जो हाल था, उन्होंने कहा कि शायद उससे उस तरीके का हाल तो तब भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करने की जरूरत है जब हम प्रतिरोध की बात करें, रेजिस्टेंस करें, तो उन्होंने कहा कि हमें जरूरत है कि हम सारे के सारे जो संस्थाएं हैं, जब वो अंडरमाइन हो रही हैं, वो गलत काम कर रही हैं, तो हमें जरूरत है कि अपने रेजिस्टेंस में हम ये चीज शामिल करें कि हम उनके भी गलत चीजों के खिलाफ बोलेंगे। हम बिना डरे, बिना संकोच के, जो इंस्टीट्यूशंस अगर गलत काम करते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे कोई और संस्था हो, उनकी भी जो गलत काम है उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, और हम विजिलेंट रहेंगे, हम सतर्क रहेंगे कि कहीं पर अगर इंस्टीट्यूशंस चूक रहे हैं तो उनको भी सही किया जाए। और फाइनली उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई भी जरूरी है, और फाइनली रेजिस्टेंस और स्ट्रगल जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं की ओर नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। तो उन्होंने उसी से अपनी बात समाप्त की कि लोगों को सड़कों पर उतरना होगा, जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, जो संघर्ष है, वो सड़कों पर भी होना होगा, उन मुद्दों पर होना होगा जो लोगों के मुद्दे हैं, और सत्ता को भी हिलाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जी, आपने अपनी बातें रखी। आकार पटेल बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की, उनका इंटरनेट नहीं चल रहा है, उनके मेरे पास मैसेजेस लगातार आ रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं। We hope that he will be able to join us, but I'm going to request Gauhar Raza to now please speak to us. Gauhar Raza की जो पोएट्री है, उनकी जो नज़में हैं, वो हमें जो हम कहते हैं ना कि will there be singing in the dark times? Yes, they will be singing about the dark times. तो गौहर, आप हमें डार्क टाइम्स में भी, जिसमें रेजिस्टेंस की जरूरत है, स्ट्रगल की जरूरत है, आपकी पोएट्री और आपकी नज़में हमारे साथ रहती हैं, हमें उम्मीद देती हैं, they give us hope. So we want to hear from you, Gauhar. The floor is yours for the next 10 to 12 minutes. We request you to speak to us, and we also request you to recite some of your poems of resistance and struggle. बहुत शुक्रिया अंजलि आपका और उन सारे साथियों का जो आज मौजूद हैं वक्त निकाल करके, और पिछले 2 घंटे से लगभग 100 से ऊपर दोस्त लगातार बने हुए हैं। जो बातें कही गई हैं उनमें कुछ भी और ऐड करना, कुछ भी जोड़ना जरा मुश्किल काम है। मैं सबसे पहले सबको और खुद अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उन शहीदों को याद करना चाहता हूं जिन्होंने 1857 में गदर का नाम दिया था अंग्रेजों ने, लेकिन हम उसको जंग आज़ादी कहते हैं। उस जंग आज़ादी की शुरुआत की थी। आज शाम तक दिल्ली पर लगभग पूरा कब्जा हो चुका था, और उस वक्त जब मैं फिल्म बना रहा था 1857 के ऊपर, तो मेरे सामने वही सवाल थे जो प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी ने अभी रखे हैं। वो सवाल बहुत अहम सवाल थे। मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ फिल्म ही बना रहा था, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि ये जंग किसकी जंग थी।
ये आजादी की जंग क्या किसी धर्म के लिए थी, क्या किसी जात के लिए थी, क्या किसी एक तरह के समुदाय के लिए थी, या ये जंग सिर्फ उन लोगों की थी जो पुराने दौर में सत्ता पर काबिज थे? मुझे लगता है कि अगर हम देखें इस जंग को तो लगातार दिखाई देता है हमको कि ये जंग ऑपरेशन के खिलाफ और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ एक जंग। ये जंग उस जुल्म के खिलाफ थी जिसने हिंदुस्तान के खून को चूस कर बिल्कुल उसको कंगाल बना दिया। और ये जंग, सही बात है कि लगभग 1 साल से लगातार कहीं ना कहीं लड़ी जा रही थी, जो 1857 में फट करके निकली। अंग्रेजों को बहुत डर था, और मृदुला जी ने कहा, मैं वो एक छोटा सा विलियम फोर्ब्स का की डायरी से एक किस्सा बता देना चाहता हूँ यहाँ, कि जब उनके टुकड़ी को ये कहा गया कि वो कानपुर से अब चलें, कानपुर जीत लिया, और उसके बाद वो चलें लखनऊ की तरफ, तो वो पैदल उनकी टुकड़ी जा रही थी कॉलम्स में, और वहां उनसे आगे जो लोग थे उन्होंने एक आदमी देखा जो वेशभूषा गेरवी थी उसकी, और उसने चोटीधारी था और मृगशाला पर बैठा हुआ था वो। उसके बारे में उन्होंने, एक ने कहा कि लेट्स किल हिम, तो दूसरे ने कहा नहीं, दीज आर नॉट ट्रबल मेकर्स, ये परेशान नहीं कर रहे हैं, ही इज नॉट ए मॉमडन, ही इज अ हिंदू, ही इज अ पांडी। जितनी देर में ये उसके करीब पहुंचते उतनी देर में उस पांडी ने, उस हिंदू ने, जैसे वो हिंदू कह रहे थे, उसने अंदर से गन निकाली जिस पे बैठा हुआ था और दोनों को मार दिया। ये था 1857। उसके बाद उसका क्या हुआ वो तो लिखते ही हैं कि उसको मार दिया गया, खत्म कर दिया। जो खून बह रहा उसका कोई रंग नहीं था, उसका गेरुआ रंग नहीं था, वो लाल था, उसका हरा रंग नहीं था, वो लाल था। मैं समझता हूं कि ये हमारी परंपरा है, इसलिए हमें याद करनी चाहिए, ये हमारा ट्रेडिशन। और ये ट्रेडिशन सिर्फ 1857 का नहीं है। हमें ये आज बताया जा रहा है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में 1857 से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, सारे मुसलमान राजा हिंदुओं पर जुल्म कर रहे थे और सारे हिंदू राजा मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। हमें इस तरह का इतिहास इस वक्त पढ़ाया जाए। जाहिर है कि 1857 हो ही नहीं पाता अगर इस देश का इतिहास इस तरह का इतिहास है। राजा थे, जुल्म करते थे, जब उनकी ताकत कम होने लगी तो अंग्रेज आ गए। लेकिन अंग्रेजों ने जिस बात को मृदुला जी ने के एक और लेक्चर से मैंने समझा, वो ये था कि अंग्रेजों ने इससे डर करके कि इकट्ठा होंगे तो फिर हमारे खिलाफ खड़े होंगे, इससे डर करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू की। और मैं ये समझता हूं कि आज वो लोग, या सन 47 में वो लोग जिन्होंने इस देश का विभाजन किया, और आज जो कुछ हमारे चारों तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी परंपरा अलग परंपरा, उनकी परंपरा हिंसा की परंपरा है, उनकी परंपरा जुल्म करने की है, उनकी परंपरा लोगों को बांटने की, नफरत फैलाने की। और ये परंपरा उन्होंने अंग्रेजों से सीखी। इसलिए मैं उनको राजनीति में कम से कम अंग्रेजों की औलाद ही कह सकता हूं, क्योंकि वो उसी परंपरा पर आज देश के जहन को बांट रहे। हमें पूरे अपने आजादी के संग्राम के इतिहास में दिखाई देता है कि बहुत बार ऐसे मोड़ आए, जिस मोड़ का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आरफा ने भी किया और अपूर्व ने भी किया, कि वो बहुत डार्क टाइम्स थे। और जब डार्क टाइम्स से कोई देश, कोई समाज गुजर रहा होता है, तो वहां के मेजॉरिटी को ये पता नहीं होता है कि वो डार्क टाइम्स से गुजर रहे, वो अंधेरे दौर से गुजर रहे, और उस अंधेरे दौर के वो खुद जिम्मेदार बन जाते। लेकिन हमेशा हर अंधेरे दौर में उम्मीद के, शांति के, प्यार के, मोहब्बत के, साइंटिफिक टेम्पर के, एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड साइंटिफिक टेम्पर, इसलिए कि ये हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, उसके चिराग जलते हैं।
और ये चिराग हो सकता है कि अंधेरे को फौरन ना मिटा पाए, पर अंधेरे का नुकसान बहुत करते हैं। इसलिए ये चिराग किसी भी समाज में बहुत अहम होते हैं, इंपॉर्टेंट। मैं आज के हालात पर जब नजर डालता हूं तो मुझे ये चिराग सारे हिंदुस्तान में जलते दिखाई देते हैं। जहां जहां आरफा ने और अपूर्व जी ने, दोनों ने, और उसके बाद प्रशांत जी ने भी हमें ये दिखाया और बताया, और मैं इससे एग्री करता हूँ पूरी तरह से कि हम बहुत डार्क पीरियड से गुजर रहे हैं, बहुत अंधेरे के पीरियड से गुजर रहे हैं। लेकिन ये चिराग भी हर जगह चल रहे हैं, ये चिराग बहुत नुकसान कर रहे हैं, और इसीलिए इन चिरागों के ऊपर लगातार हमला भी हमें दिखाई देता है। सीए मूवमेंट, कितने नौजवान उठे, और आज तक वो नौजवान, इसके बावजूद कि आज एक जश्न का दिन है, यूएपीए ऑलमोस्ट हटा सा दिया गया, कुछ वक्त के लिए तो हटा ही दिया गया है, उस यूएपीए का सामना करते हुए भी वो आज डटे। सिर्फ यही नहीं, कहीं एक दूर बैठा हुआ आसाम में एक जज ये भी पास कर देता है कि इस वक्त डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिग्नेश को अरेस्ट किया गया। वो जूनियर जज है, वो अपने पूरे करियर को दांव पर लगाने के लिए मुझे लगता है तैयार। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि हर इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसी आवाजें लगातार उठ रही। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मशाल की तरह से इस देश का किसान उठा। उम्मीद का दामन तंग हो सकता है, लेकिन तार तार नहीं। और इसीलिए अगर हम गौर से देखें तो हमें वो भी लगातार गिनते रहना चाहिए जो हमें उम्मीद दिलाता है। हाँ, यूपी के इलेक्शन के बाद मैं भी आरफा की तरह से और मेरे जैसे जाने कितने लोग डिप्रेशन में थे, पर ये उम्मीद हमें आगे ले जाएगी। और इसलिए एक बार फिर आजादी के संग्राम की याद में एक पुरानी नज्म, कभी तो स्वर्ग झुक के पूछता ही होगा ए फलक, ये कैसी सरजमीन है, ये कौन लोग हैं यहाँ जो जिंदगी की बाजियों को जीतने की चाह में लुटा रहे थे बेझिझक लहू के सब अशरफियां। यहाँ लहू लहू के रंग में आया था किस तरह, न सब्ज था न केसरी, न था सलीब का निशान, न राम नाम था यहाँ, न थी खुदा की रहमतें, न स्वर्ग इनकी मंजिलें, न नर्क का सवाल था। मसीहो गौतमो रसूल कृष्ण कोई भी नहीं कि जिसके नाम जाम पी के मस्त हो गए सब। ये कौन सी शराब थी कि जिसका ये सुरूर था, ये किस तरह की मस्तियों में इस कदर गुरूर था, ये किस तरह यकीन हो कि एक मुश्त खाक है जो जिंदगी की मांग में बिखर गई इससे दूर से। इन्हें यकीन था कि इनके दम से ही बहार, इन्हें यकीन था कि इनके दम से ही बहार है, ये कह रहे थे हमसे ही बहार पर निखार है। बहार पर ये बंदिशें इन्हें कबूल क्यों नहीं, इन्हें कबूल क्यों नहीं ये गैर की हुकूमत। ये क्या हुआ कि यक सब खामोश हो गए, ये क्या हुआ कि यक बयक सब खामोश हो गए। यहाँ पे धूल क्यों पड़ी, यहाँ पे ओस क्यों पड़ी, ये धूल दब गई है क्यों, वो जिससे फूल खिल उठे थे जख्म भर गया है। मुझे यकीन है कि फिर यही इसी मकाम से उठेगा हश्र, जी उठेंगे सारे नरम पाक, बराबरी का सब जुनून सिमट के फिर से आएगा, बिखेर देगी जिंदगी की हीर अपनी जुल्फ को, यहीं से उठेगी सदा कि खुद पे तू यकीन कर, यहीं से उठेगी सदा कि खुद पे तू यकीन कर, यहीं से जुल्म की कड़ी पहला वार आएगा, यहीं से जुल्म की कड़ी पे पहला वार। दोस्तों, ये पहला वार लगातार आता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग जो कल
कुतुब मीनार के ऊपर गए और वहां उन्होंने हंगामा किया। वो कितने थे? 12, 15, 20। मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान की सरिश्त को, इसके डीएनए को बदलना बहुत मुश्किल काम। डार्क टाइम्स में भी हमारे मुल्क के अंदर ज्यादातर अवाम का बड़ा हिस्सा अमन, शांति, चैन, मोहब्बत, भाईचारा चाहता है। हो सकता है कि वो यूपी का इलेक्शन जीत जाए, हो सकता है वो मध्य प्रदेश का इलेक्शन खरीद ले, हो सकता है कि वो असम में आग लगा करके वहां भी सत्ता हासिल करे, लेकिन मुझे उसके बावजूद इस मुल्क के अवाम में यकीन, इस मुल्क के अवाम में नहीं, मुझे दुनिया के हर मुल्क के अवाम में यकीन है कि वो सत्ता के खिलाफ ज्यादा देर तक बर्दाश्त करके खामोश नहीं रह सकता। सिर्फ 1-2 आवाजें जो हमें सुनाई देती है, वो सिर्फ 1-2 आवाजें नहीं, वो आर्टिकुलेशन है लाखों करोड़ों लोगों की आवाजों का। और मैं समझता हूं कि कितनी भी साजिश करें, साजिशें बहुत देर तक कामयाब नहीं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि अच्छी लगती है, ये कहना अच्छा लगता है कि डार्क टाइम्स बहुत देर नहीं चलते। हमने देखा है कि पाकिस्तान में डार्क टाइम्स बहुत देर चले। हो सकता है हमारी जिंदगी में बदलाव, वो बदलाव जिसका ख्वाब हम, लेकिन जरूरत इस बात की है साजिशों को उजागर करने। एक और नज्म, जब साजिश हादसा कहलाएं और साजिश करने वालों गद्दी पे बिठाया जाने लगे, जमहूर का हर एक नक्श कदम ठोकर से मिटाया जाने लगे, जब खून से लथपथ हाथों में इस देश का परचम आ जाए और आग लगाने वालों को फूलों से नवाजा जाने लगे, जब कमजोरों के जिस्मों पर नफरत की सियासत रक्स करे, जब कमजोरों के जिस्मों पर नफरत की सियासत रक्स करे और इज्जत लूटने वालों को फूलों से नवाजा जाने लगे, जब जेल में बैठे कैदी को हर एक सहूलत हासिल हो और हर बाइज्जत शहरी को सूली पे चढ़ाया जाने लगे, जब नफरत भीड़ के बेस में हो और भीड़ हर एक चौराहे पर कानून को अपने हाथ में ले, जब मुंसिफ सहमे सहमे हो और मांगे भीख हिफाजत की, ऐवान सियासत में पैहम जब धर्म के नारे उठने लगे और मंदिर मस्जिद गुर्जा तक हर एक पहचान सिमट जाए, जब लूटने वाले चैन से हों और बस्ती बस्ती भूख कुगे, जब काम तो मांगे हाथ मगर कुछ हाथ न आए हाथों के और खाली खाली हाथों में त्रिशूल थमाई जाने लगे और खाली खाली हाथों में तलवार थमाई जाने लगे, तब समझो मजहब और धर्म नहीं, तहजीब लगी है दाव पर, रंगों से भरे इस गुलशन की तकदीर लगी है दाव पर। उठो के हिफाजत लाजिम है तहजीब के इस मैखाने की, उठो के हिफाजत लाजिम है हर जाम की, हर पैमाने की। और मुझे यकीन है कि लोग उठेंगे, कहेंगे कि हम हिफाजत करेंगे तहजीब के इस मैखाने की। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर जी। इसका तो ट्रांसलेशन मैं बिल्कुल जुर्रत नहीं कर सकती करने की, लेकिन आई थिंक दैट so powerful, and I think the whole message of us not even having the option to lose hope. I think जो आपने बातें कही, just in a few words, if I could translate them in English, you talked about the tradition of unity, the tradition of harmony that you pointed towards, and that that is really the tradition of our country. We are being told today there is a different propaganda, there's a different narrative that is being sold today.
But the reality is that in 1857, like Mridula said, you reiterated that people came together, there was a solidarity, there was a certain harmony, there were people who came together, there was a mixing of religion, races, and that's really where we want to draw our strength from as well. The tradition today seems to be very different. It seems to be what was pointed out, that after the 1857 revolt, the attempt to divide and rule, and that is what the narrative that has been adopted very openly by the regime today, by those in power. And how in the dark times, the majority doesn't even realize that it is going through the dark times, and sometimes even become complicit in the dark times. But that is not enough reason to lose hope. And that resistance is alive is something that we are seeing every day, and which is something that I think you talked about, the lamps of hope and resistance. You really reminded us in the end that there is hope, because there are these islands of resistance, of struggle. There is this constant pushback. There is this constant struggle that is going on in small ways, whether it is a judge in a high court or in a lower court who's sitting somewhere in Assam or any other part of the country, or it is a judge of the Supreme Court that finally gives a judgment of the kind that we saw today in sedition. Whether they are journalists like Arfa and Rajdeep and many others who joined us today, or there are farmers in our country who in such large numbers came and gave all of us hope. And so your message really was that there is hope. We must hold on to hope. And even though there are these dark times, which we all are experiencing, which pull us down, we must carry on. And हमें अपना प्रतिरोध उठाना तो लाजिम है. तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. And Shabnam is here on behalf of Shabnam, everyone else at Anhad, on behalf of Satark Nagrik Sangathan. I thank all of you. We are going to close the Facebook Live now, and we are, however, not closing this link immediately. So for those who want to speak, who want to say something, please do raise your hand, and please do unmute yourself and speak. Anybody wants to say anything? If